On behalf of Lazarus Dias Education Academy, I welcome you all, and let's join for the prayers. You can read the prayer from the screen. Lord, grant me the courage to change the things I can and ought to be changed, the serenity to accept the things I can't, and the wisdom to know the difference. So friends, I will briefly introduce Lazarus Dias Education Academy. As you all are interacting with Lazarus sir for last few sessions, you already know a lot about him, but I'll just briefly introduce Lazarus Dias Education Academy. Lazarus Dias Academy has been in insurance training for last more than 14 years now. And regarding our development officers training, I would like to briefly tell you that we have done GOIB training in Lonavala. We used to do a 3 days residential program. We must have conducted around 10 batches in Lonavala. And apart from that, we have done training for IDBI Federal, where we must have done training for their senior development officers uh, around 25 locations all over India. And myself and Lazarus sir, we used to go to all these locations and conduct the training for advisor, their trainers, their development officers, full line. And apart from that, we have done training for Life Insurance Corporation of India also for the last 10 years. So one of the most interesting thing which I would like to share with you is that Anil Jha sir is here, and Anil Jha sir will remember that many years back, around I think 8 to 10 years back, in Nehru Center we had organized full day, 1 day recruitment training, and 240 people had attended that training. Out of that, 40 people were from Mumbai, and 200 people had come from all over India and had come for exclusively for this 1 day training, and then they had returned back. Some had come by train, some had come by flight. And this was a very historic, long time before LIC started talking about the Karwa and the recruitment and other things. We had organized this training, and I think Anil Jha sir is already here with us. He's our chief guest, so he will be sharing more. So we have few guests of honors, and this was a brief introduction of Lazarus Dias Education Academy, and more things you will come to know as you are going to be for this year-long program which we are launching, and the first inaugural session is today. And we have invited our chief guest Mr. Anil Jha, and our guests of honor are there. So I will invite our first guest of honor, Mr. Ajay Arora, who is also popularly known everywhere in the insurance industry, because you must have used his software, or your agents must have used his software. He is the owner of Datacom. So I request Mr. Ajay Arora to bless us. Mr. Ajay Arora. Thank you, Ashish. Very good morning to all of you. It's a wonderful new beginning, I would say. Today, Lazarus has set up a new training program, which is going to be a year long. And I can see more than 50 people, nearly 57 participants already on board by this time. I guess more will be joining subsequently. So, friends, I will not go into the discussion of the COVID, and because it's been an overdose of lot of information on the economic situation and the health situation and so on. While I wouldn't want to go into details of that, but certainly I would like to mention here that this is the time for the development officers and SBAs of LIC of India. We are very strongly poised to capture the market and get a leadership position. And while the consumer mindset today is not very strong, and it is not very conducive to investing in other instruments, the confidence level of people in LIC is very high. And
few days back, I had done a webinar for the development officers in SBAs, and it was attended by around 8,000 plus DOs and SBAs. I mentioned about how they are in a position of strength as far as recruitment is concerned, as far as activization is concerned, uh, as far as reinstatement of those lapsed agents are concerned. So there are so many opportunities that is there in front of you, and now we are in a totally different paradigm from a traditional way of interacting with customers to a virtual manner, like the way we are doing. Ashish just mentioned that many years back, when you did a historical session in Nehru Center, there were 240 people, and people traveled from all over the country to attend a one-day seminar. But today, I think this is a wonderful gift to the mankind, that technology is helping you come together. There are no geographical boundaries on this forum. I'm sure there'll be people not only from Mumbai, from all over the country, and probably in times to come all over the world also. So it's a great initiative that Lazarus has taken, and I'm very happy that this set of professional development officers and SBAs who are very optimistic about the way ahead for them have come and patronized this forum of Lazarus Dias, and committed themselves to a year-long program with him. And I'm sure Lazarus, with his ground experience, he has been an agent, active agent. He has been an achiever at for LIC for many years, and his experience of more than 14 years into training. And I've been hearing a lot about his effective transformations of advisors and development officers. So this program that he has set it up for about a year, with constant interaction on I don't know exactly the pattern. Maybe it's a fortnightly basis, weekly, or a monthly basis. Will help you nurture your way ahead, and it will help you to take the opportunity leading it from the front. Very happy to see my dear old friend Anil also here. Anil Jha, namaskar. We again have a very long, old association. Right from my initial struggling days, he has been my patron, and his entire team has been, associated with us. Have wonderful people around us. Been a long journey for Datacom also. More than 35 years now, I'm into service to the LIC development officers and agents. I would, I can see many people whom I personally know, and some people have probably logged in with some nicknames, so I'm not able to relate directly. But hi to everyone, and very my best wishes to all of you, that in this course you will take a leading edge, and you will be able to reach out to the maximum number of people, and get them onboarded with LIC, and also get your entire team into a high momentum for doing business in this year. We have lost the first quarter almost, but I think with the situation coming ahead, I see that this year, my gut feeling is that with professional outlook, the development officers and agents are easily going to double their average production. So my best wishes to all of you. And Lazarus, you're doing a wonderful job. Keep doing good work for the community. And it's a great feeling to change someone's life. And I think you are on the right path. So thank you, my friends. I wouldn't take much time, and I would want Lazarus to spend more time on the actual purpose of this course. So thank you, Lazarus. Thank you for inviting me. At Datacomp also, we are doing our bit. We have been doing a lot of innovations. Since the time of the lockdown, I have been 200% busy than what I was in my office. So I've been working nearly 14 to 15 hours every day.
working on a lot of new things because we are also seeing the way the things are going to change. So what are the changes that we need to do in making your interactions better with your customers? So there are a lot of new things that we are doing. So in times to come, we'll be rolling out several tools that will help you to better engage with your customer, sell better, service better to your customer, have more bonding with your agents. So I think the whole ecosystem is working towards your great future. All the best, dear friends, and you all rock. Thank you. Thank you very much. Thanks, Ajay. Sir, thank you very much. Pleasure. Now I invite our next guest of honor, and he is Mr. Ranjit Singh from BITV. BITV, I hope you must have seen, it's a web-based channel dedicated to financial advisors. And Lazarus sir's one full day session on his book LDA Success was run few days back on a Sunday, and he's a promoter of BITV, Mr. Ranjit Singh. I request Mr. Ranjit Singh. Thank you, Ashish ji. Thank you very much, and thank you, Lazarus ji. Lazarus ji, thank you very much. आपने मुझे इतना अच्छा opportunity दिया, and I want to congratulate all the participant here. जहाँ आज की तारीख में लोग जो है वो सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, और आप लोग जो है इतना अच्छे प्रोग्राम में अपने ग्रोथ के लिए आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू. कुछ समय पहले की बात है, मे बी 8-10 साल पहले, in 2009 I had got an opportunity to attend a seminar जहाँ पर करीबन 600-700 लोग थे, हॉल भरा हुआ था, और वो जो सेमिनार है was taken by Mr. Lazarus Dias जी की जो एनर्जी थी, जो पैशन था, वो देख के जो है मैंने फर्स्ट टाइम कोई मुझे लेके गया था वहाँ पे, और उनकी एनर्जी और पैशन देख के ही मैं उनका फैन बन गया था, जिस तरीके से वो प्रोग्राम ले रहे थे. और उनके उस कुछ मेरे ख्याल से 2 घंटे के प्रोग्राम में मैंने एक पॉइंट जो है वो लिया वहां से, और वो एक पॉइंट जो है वो आज भी मेरे साथ में है. और मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो एक पॉइंट मुझे उस वक्त नहीं मिला होता तो आज मैं अपनी लाइफ से जितना ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, शायद मैं उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होता. सो लाजरस जी, थैंक यू वेरी मच. आपने उस वक्त मैंने आपकी ट्रेनिंग को अटेंड किया और मुझे बहुत ही यूनिक पॉइंट आपसे मिला, एंड आई होप आप बहुत सारे यूनिक पॉइंट जो है इस सेशन में देंगे. आई वुड जस्ट लाइक टू, जैसा कि अजय ने बताया कि वी हैव स्टार्टेड अ चैनल कॉल्ड BITV. BITV ये चैनल जो है हमने खास तौर पर फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है. ये चैनल कुछ ऐसा ही है जैसे CNBC चैनल है. CNBC ये चैनल जो है वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए है, और मैं ये बोल सकता हूँ कि BITV ये चैनल हमने जो बनाया है, ये चैनल हमने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की ग्रोथ के लिए बनाया है. इस चैनल को बनाने के पीछे हमारा विजन ये है कि ये चैनल आने वाले दिनों में एक टूल बनेगा फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए, जो कि एक छोटे फाइनेंशियल एडवाइजर को एक बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर बनाने में बहुत ज्यादा काम करेगा. उसको अगर आज की तारीख में वो छोटा नया आया है इंडस्ट्री में और उसकी ज़ील है, या फिर एग्जिस्टिंग है उसकी ज़ील है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की, तो इस चैनल के थ्रू जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर सकता है. तो कैसे कर सकता है, उसका लॉजिक ये है कि जितने भी, मेरी ऐसी स्टडी है कि जितने भी बड़े बड़े टाइकून्स हैं, वो अपने आप को ग्रो करने के लिए या अपने आप को सस्टेन करने के लिए या और बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए मीडिया का सहारा लेते हैं, टेलीविजन का सहारा लेते हैं. अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि एक्चुअली हमारे पास में जो माइंड है उसमें 2 हिस्से हैं, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है. जो कॉन्शियस माइंड होता है वो उसके पास बाइंग डिसीजन नहीं होता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है बाइंग डिसीजन उसके पास में ही होता है. और हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, जब 1-to-1 करते हैं तो ब्रेन के सामने ब्रेन होता है, और जब ब्रेन के सामने ब्रेन होता है तो कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है. और जब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है तो सारी की सारी चीजें जो है, हमारी जो समझाई हुई चीजें हैं वो कॉन्शियस माइंड में जाती हैं, और कॉन्शियस माइंड तो डिसीजन लेता ही नहीं है, तो हमारे बहुत सारी मेहनत जो है ऐसे वेस्ट हो जाती है. लेकिन जब एक आदमी जो है सामने टेलीविजन पे चीजें देखता है या मोबाइल में चीजें देखता है, तो उसके सामने ब्रेन नहीं होता है, इसलिए कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव नहीं रहता है, और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, और सारी की सारी चीजें जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं. और जब सारी की सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं तो सबकॉन्शियस माइंड इज अ डिसीजन मेकर, और वहां पे डिसीजन हो जाता है. और जो भी ऐसे लोग जो सबकॉन्शियस माइंड का गेम खेलते हैं
वो बहुत ज्यादा, ऐसे बिजनेसमैन जो सबकॉन्शियस माइंड का गेम खेलते हैं जाने या अनजाने में, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, बहुत फास्ट होते जाते हैं। और जो लोग कॉन्शियस माइंड के गेम में अटके हुए हैं, 1-to-1 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 में अटके हुए हैं, उनको जो है आगे बढ़ने में जो है बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, आगे बढ़ने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है। तो ये लॉजिक है। BITV जो है ये साइंस को लेकर जो है एक छोटे फाइनेंशियल एडवाइजर को, या जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर ये टूल का सहारा लेता है, बहुत आगे तक जा सकता है। एंड आई वांट टू से टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि BITV ये प्लेटफॉर्म जो है अभी हम लोग ने फैलना चालू किया है, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर को हम ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो सबकॉन्शियस माइंड का गेम खेल सके। एंड दिस प्लेटफॉर्म इज फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल फाइनेंशियल एडवाइजर। और आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स लोगों को जन्म देते हो, तो दिस प्लेटफॉर्म इज फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल द फाइनेंशियल एडवाइजर। ये सभी आप सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच लाजरस जी, आपने इतना अच्छा मौका दिया। एंड कांग्रेट, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप जो है आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, आप लोग जो है अपने ग्रोथ की तरफ जो है आप लोगों ने ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में आपने ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच लाजरस जी। Thank you very much. Thank you very much, Ranjit Singh ji. Now it's time for me to invite the next guest of honor, and he is Mr. Murli Mehta. Mr. Murli Mehta, you must be aware, he is a living legend, I feel, in the insurance industry. He has been, when I was in, I always tell him that when I was in college, in 1991, I used to attend his training session. And he has been very popular in insurance industry. Lot of people must have attended his live training session. And Murli Mehta sir, of course, in last few years, the new development officers who have joined, there are few videos also, they may not be aware, but it will be great honor for you to, for the old people to reconnect with Murli Mehta ji. And the fresh development officers, if you have heard about him, I invite Mr. Murli Mehta to bless us. Thank you, Ashish. Thank you very much. Good morning, friends. कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि ईश्वर से आभार माने, कोई बात नहीं, हमारे जीवन में इतने अच्छे मौके दिए हैं, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिए, इतने अच्छे लोग भेजे हैं. Mr. Lazarus Dias is one of the persons for whom I would like to say thank you to God for having sent me in my life. Very nice person, a thorough gentleman, very respectful to other people, down to earth and practical. His points are practical, his sessions are practical. He's a good family man, a very good friend also. I have experienced, we have been friends for more than a decade now, and a nice human being. अगर कोई अच्छा इंसान है तो बहुत सारी क्वालिटीज उसमें ऑटोमेटिकली आ ही जाती है. मैं 24 कैरेट एप्रिशिएशन में मानता हूँ, इसलिए जो मैं बातें कर रहा हूँ वो सही में आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा. यू ऑल नो हिम वेल. ही इज अ गुड ट्रेनर आल्सो, एक्सीलेंट ट्रेनर. उनके हाथ नीचे आप सब जानते हो कि सब लोगों ने बताया कि काफी अच्छे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स तैयार होके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Lot of credit goes to him. He's a very engrossing speaker, very gripping one, good speaker, very knowledgeable person. बहुत पढ़े लिखे इंसान है. अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बहुत रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके जो इंफॉर्मेशन आती है उसको वो अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं. It's a joy to work with him, and I'm sure you will also enjoy his sessions very well. दोस्तों, कभी कभी लाइफ में एक सिंगल डिसीजन, एक सिंगल एक्शन हमारी लाइफ का कोर्स चेंज कर देती है, क्वालिटी चेंज कर देती है. आपने जो ये प्रोग्राम ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है, हो सकता है कि इट माइट प्रूव टू बी सच अ डिसीजन व्हिच कैन चेंज कोर्स एंड क्वालिटी ऑफ योर करियर. मैंने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, वो मुझे काफी इम्प्रेस कर गया. मैं आपके साथ शेयर करने को चाहूंगा कि हमें सक्सेस मिलती है या फेलियर मिलती है या कोई कॉन्सिक्वेंस हमारे जीवन में आता है, इज नॉट बिकॉज ऑफ वन सिंगल फैक्टर. सो मेनी फैक्टर्स पुट टुगेदर, इधर हम सक्सेसफुल होते हैं या तो हम निष्फल होते हैं. गुआम एयरपोर्ट के ऊपर एक एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया. इंक्वायरी की गई तो पता चला कि इट वाज अ डार्क नाइट.
रनवे के ऊपर लाइट्स बराबर फंक्शन नहीं कर रही थी। कंबोडियन पायलट था और अमेरिकन रडार मैन था, उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, नेविगेटर एंड पायलट के बीच में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया था। मेनी फैक्टर्स played a role. It is true for all of us also. A contributing and effective team is one of the factors which is behind the success of many people. Why many people? All the people. If you want to be successful, you need to have a good team. Build a very powerful team of contributing and effective life insurance advisors. और मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ कि आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। मेरे हिसाब से रिक्रूटमेंट का प्रोग्राम नहीं है, दिस इज अ सक्सेस जनरेटिंग प्रोग्राम। मैं एक कंपनी में बहुत लंबे अरसे तक डायरेक्टर एचआर रहा था और मुझे पता है कि टीम का बहुत इंपॉर्टेंस है। अ पावरफुल टीम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू विल बी वेरी हैप्पी टू हैव जॉइंड दिस प्रोग्राम इन टाइम्स टू कम। आप ये प्रोग्राम में से कितना पार्टिसिपेट, कितना फायदा लो पाओगे, वो इसका आधार आपके ऊपर है। आप सब लीडर से, ट्रेनर से आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं शेयर करना चाहूँगा एक छोटा सा इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन माय लाइफ। मैं और मेरी डॉटर एक नवरात्रि के दिनों में डांडिया रास खेलने को गए। 11 बजे गए थे, 12:30 बजे तक मैं खेलता रहा, फिर बाहर आके खड़ा हो गया। मेरी डॉटर 3:30 बजे तक खेलती रही। हम घर जा रहे थे, उसने पूछा डैडी आप एंजॉय किया? मैंने बोला इतना एंजॉय नहीं किया। तो क्या करते थे? कहा कितने बजे तक खेले? मैंने बोला 12:30 बजे तक। फिर क्या किया? तो मैंने बोला मैं बाहर खड़ा था। तो कि अगर आप डांस नहीं करोगे तो एंजॉय कैसे करोगे? एक छोटी सी बात उन्होंने बताई मुझे, लेकिन उसमें बहुत बड़ा मैसेज था। अगर जिंदगी में कुछ पाना है, एंजॉय करना है, तो पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है, इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। लर्निंग इज नॉट अ process of imparting knowledge and information. Learning is a process of participation and involvement. जितना इन्वॉल्वमेंट ज्यादा, जितना पार्टिसिपेशन ज्यादा, उतना हम ज्यादा उसमें से पाएंगे। Ladies and gentlemen, you all have taken the right decision to know more about the right subject from the right person. I am sure you are going to benefit a lot. It is a right decision. Wish you all the best in your journey on this program and in life also. Best wishes. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Friends, now it is the time to invite our chief guest, Mr. Anil Jha. I'd like to briefly tell you only two things. One, I have already shared with you that Nehru Center program. The background of this program is actually that Lazarus sir had done a full year training with Anil Jha sir. And after that, Anil Jha sir had promised him that I'll give you one day because of this success. And Lazarus sir decided that that one day is going to be this recruitment training day. And that's how this whole program got designed. The person who has taught, I would say, recruitment to the whole insurance industry and especially LIC. Because at one time he used to have around 750 agents and the highest number of agents in India. And he has branches in Pune and Delhi. I think there cannot be any person better than Mr. Anil Jha to share his experience and bless us. I would like you to give a big round of applause and we invite Mr. Anil Jha to share with us. Anil sir. आवाज नहीं आ रहे। Sir, voice is not coming. No, voice is not coming, Anil.
Huh. Can you hear me now? Yeah. Now we can. Yes, Okay, yes, fine. yes. We Yeah, are okay, waiting fine. to hear from you, sir. Okay, so sorry. There was some problem with the laptop because I'm using my son's laptop and I'm not used to this laptop because my laptop, there's some issue with my laptop. So apologies once again for making you all wait for 2 or 3 minutes. So thank you once again, Lazarus Dice Academy, for having me here. It's a pleasure, privilege, and an honor to be with all of you, especially Ajay Arora, my dear friend of Ashish Vanjara, Mr. Ranjit, Murli Bhai, the great. I mean, it's nostalgic to be with Murli Bhai because I know him for what, donkey's years now, and we have heard him. He has trained us. Besides professional training, the human values, the personal values, the other things that Murli Bhai has trained us is beyond bounds for a development officer. So thank you, Murli Bhai. Thank you, Ajay Arora sir. Thank you, Ashish Vanjara. Thank you, Lazarus Dice. So we go into the session. Fine, friends, I just have 10 or 15 minutes of time. So let me quickly go and get into the nuts and bolts of this business, because I am no Murli Bhai, I am no Ajay Arora who will talk on macro levels. So let me, and because I think those guys, since those people are already talking on macro levels, I need to talk on the micro level, which will help you people as more in your day-to-day life. So before I start, I also congratulate all of you because इस माहौल में when everybody is feeling depressed, down and out, some people are also frustrated. आप लोगों ने ये training join किया, so my heartiest congratulations to you. This is the first step and the right step in the right direction. So my first thing would be to, of course, see, throughout my own life, I have always believed that training. I'll tell you, I'll give you a classic example. एक 10वीं पास लड़का या लड़की, उसको सैलरी कितना मिलता है? 10,000, 12,000. सिमिलरली एक आदमी जब ग्रेजुएट कर लेता है तो उसको सैलरी कितना मिलता है? मे बी 15,000, 20,000. A PG gets about what, 25, 30, 35,000. But an MBA from a good school, maybe if IMM will get a starting salary of what, 1 crore, 2 crore at the age of 24, 25. What does it mean? It means that higher the skills, more the knowledge, more will be your compensation. फाइन. इसके लिए आपको ट्रेनिंग और स्किल्स के ऊपर कंटिन्यूसली काम करना चाहिए. ये तो आपका सिर्फ शुरुआत है. आपको हर ट्रेनर के पास कुछ ना कुछ है देने के लिए. एंड दैट इज व्हाई यू शुड लर्न फ्रॉम एवरीवन, एंड यू विल लर्न फ्रॉम एवरीवन ओनली इफ यू आर अ गुड लिसनर. सो ट्राई टू लिसन एज मच एज पॉसिबल, ट्राई टू टॉक एज लेस एज पॉसिबल, आस्क एज मोर एज पॉसिबल. ट्रेनर को ऐसा लगना चाहिए कि मेरा दिमाग चाट रहा है ना ट्रेनिंग सेशन में. इतना क्वेश्चन आप पूछिए, बिकॉज अनलेस यू आर इंक्विजिटिव, एक बच्चे से सीखिए ना. छोटा बच्चा होता है 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का, कितना परेशान करता है अपने पेरेंट्स को लगता है कितना सवाल है इसके पास. And the child is learning. That's his formative stage of his life. Similarly, ये आपके करियर का formative stage हो सकता है. No matter where you are, whether you are a 25-year-old development officer or a 5-year-old or a PDO, professionally development officer. So try to learn as much as possible. एक चीज और बोलूंगा, जितने भी ट्रेनिंग सेशंस आप अटेंड करेंगे उससे आपका सिर्फ नॉलेज बढ़ेगा. आई एम रिपीटिंग, आप जितने भी ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करेंगे उससे आपका सिर्फ नॉलेज बढ़ेगा. आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा. बिजनेस आपका तभी बढ़ेगा जब आप नॉलेज को यू पुट इट टू यूज, यू इंप्लीमेंट द नॉलेज. सो काइंडली ऑल्सो एंश्योर दैट टुडे, और जितने भी सेशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ, या ये एकेडमी कर रही है आप लोग के साथ, इसको सिर्फ सीखो मत. आज सोने से पहले, आज सेशन खत्म होने के बाद डिसाइड करो कि व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू पुट टू यूज, व्हाट आर द थिंग्स आर यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, बहुत लोगों ने लाजरस डाइस एकेडमी में ट्रेनिंग लिया, बहुत लोग रोते रोते निकल गए, जिंदगी उनकी रोते रोते निकल गई. बस फोकस इंप्लीमेंटेशन पे कभी नहीं था. उनको लगा कि ट्रेनिंग में जाने से बिजनेस बढ़ जाएगा. ऐसा नहीं होता. बस ट्रेनिंग में जाने से सिर्फ नॉलेज बढ़ता है. बिजनेस तब बढ़ता है जब नॉलेज को हम यूज करते हैं. So that's point number one. My first take for today. My second take for today would be 2005 में लाजरस डाइस ने मेरी टीम को एक बहुत अच्छा टूल दिया था. I don't know whether he will part with that tool today also with you people or not, or other in these sessions. One of the tools was pre-sales control sheet, to monitor your agent's activity. I would request all of you कि अगर लाजरस डाइस भूल भी जाते हैं तो आप उनको छोड़िएगा मत. ये pre-sales control sheet आप लीजिएगा उनसे, क्योंकि pre-sales control sheet में आप अपने टीम को मॉनिटर कर पाएंगे. कि होता क्या है, जब आपके पास बड़ी टीम होती है, 100, 200, 300, 500 एजेंट, तो आपको मॉनिटर करना मुश्किल हो जाएगा उनकी एक्टिविटी को, unless things are in black and white. And as they say in English, you cannot manage something, you cannot manage anything
that you cannot measure. So you have to measure it to manage it, you know. So measure करने के लिए आपको बहुत अच्छा टूल है pre-sales control sheet. मुझे याद है, मुझे इससे बहुत फायदा हुआ था उस जमाने में. जो सेकंड चीज मैंने उस जमाने में मेरे को अच्छे से याद है, जो मैंने सीखा था, मेरी टीम ने सीखा था, वो तो ऑफ कोर्स आज के जमाने में उतना रेलेवेंट नहीं है वो. इट वाज जोन वाइज वर्किंग, यू नो, एजेंट्स के लिए जोन वाइज वर्किंग. वरना होता क्या था, मेरा कोई एजेंट साउथ बॉम्बे रह रहा है, वो जा रहा है थाने में मीटिंग करने या बोरीवली में मीटिंग करने, बोरीवली वाला एजेंट आ रहा था साउथ बॉम्बे. ऑफ कोर्स आज के जमाने में विद नैच इन प्लेस, मंथली मोड है, ECS है, टेक्नोलॉजी इन प्लेस, वो सब चीज रिलेवेंट हो गया. बट प्री सेल्स कंट्रोल शीट इज स्टिल वैलिड टुडे. My next step would be on stick to basics, you know. कभी भी बेसिक्स मत भूलना, सीख लेना, पढ़ लेना, कि PhD कर लेना, कि IIM कर लेना, कि आप बेसिक्स को भूल जाना. अपने बिजनेस में आपको आज भी और 25 साल बाद भी एक ही चीज आपके काम आएगा, और वो है आप कितना रिक्रूटमेंट कर रहे हैं. So if you are not adding minimum 20% of team size every year, you are in trouble, you know, you are in trouble. 3 से 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर आपकी स्टोरी खत्म हो जाएगी. For one simple reason, आपने अगर मेरा वेबिनार भी मेरा पढ़ा हुआ है इसके ऊपर, YouTube के ऊपर, ऑल इंडिया SBA फोरम पे मैंने उस पर डिटेल में बात किया था, मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाता. तो वहाँ मैंने कहा हुआ है ना, क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड 8-year syndrome. एक एजेंट जब अप्रोक्सीमेटली 8 साल पुराना होता है, तो उसका बिजनेस स्टैग्नेट होना चालू हो जाता है. या तो स्टैग्नेट हो जाता है, या रिग्रेस होता है, या वो रेंज बाउंड काम करते हैं. किसी साल 100 पॉलिसी बेच दिए, किसी साल 125, किसी साल फिर 80, और वो एवरेज 100 पे ही रह जाते हैं. Which means the agent stops growing, and if the agent stops growing, the development officer who is dependent on this agent or this set of agent will also stop growing. That's why it's very important that we keep on adding team members. Approximately 20% आपको add करना है, no matter whether you have a current team size of 50 agents, 100 agents, or 250 agents, whatever it is. The second thing that you should do, and I would suggest that 60% of your time, 60% of your time should go into recruitment. तो अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको 10 घंटे रोज काम करना है, तो आपको 6 घंटा रिक्रूटमेंट पे देना है, बाकी का 2 घंटा आपको ज्वाइंट कॉल पे देना है, और बचे हुए 2 घंटे, लास्ट के जो 2 घंटे, उसको आपको ट्रेनिंग में देना है. So these are the 3 compartments in which you can schedule your day. अगर आप बोलेंगे कि नेक्स्ट टूल जो आपको अगर चाहिए होगा, जो मैंने कहाँ से मेरे को मिला था, ऑनेस्टली आई डोंट रिमेम्बर. देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइम शीट, जो मैं आपको आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा. अगर ये इस तरह से 3 कंपार्टमेंट में काम करना है, 60% टाइम रिक्रूटमेंट, 20% टाइम ज्वाइंट कॉल्स एंड 20% टाइम, एंड ज्वाइंट कॉल भी कितना कीजिएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ. एक एजेंट के साथ मैक्सिमम 5 कॉल कीजिए, एक एजेंट के साथ मैक्सिमम 5 कॉल, उसके बाद उसको इंडिपेंडेंटली छोड़ दीजिए. जिंदगी भर आप उसके साथ ज्वाइंट कॉल करते रहो तो आप नया रिक्रूटमेंट नहीं कर पाओगे, आप बाकी लोगों के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे पाओगे. इसके लिए एक एजेंट के साथ मैक्सिमम 5 कॉल कीजिए, उसके बाद उसको इंडिपेंडेंटली छोड़ दीजिए. ट्रेनिंग, उसके बाद ट्रेनिंग देते रहिए, कॉल्स. How to, you know, allocate 60%, 20%, 20%, 60, 20, 20 towards recruitment, training and joint call. मैं उसके लिए आपको एक टाइम शीट है, there is something called time sheet which I'll follow to on WhatsApp to Lazarus. आपको शेयर कर लेंगे आपके साथ. टाइम शीट में आप सुबह 6-7 बजे जब से उठते तब से लेकर रात के 11 बजे तक आपने क्या क्या किया वो भरना आप चालू कीजिए. हर आधे घंटे पर आपको मालूम पड़ेगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कि आज आपने दिन भर तो काम किया, लेकिन उसमें से प्रोडक्टिव टाइम कितना था और अनप्रोडक्टिव काम आपने कितना किया. मोस्ट ऑफ अस, यू नो, स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम doing things which are not productive, and this is a trap. So मैं आपको Lazarus आपको मैं दूंगा, आप लोग उसको लीजिए. टाइम शीट बहुत सिंपल है, आपको आधे घंटे पे भरना है. पिछला आधा घंटा भी मैंने क्या किया. अगर आप किसी टाइम में समझो 2 घंटा मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और आप हर आधे घंटे पे उसको नहीं भर सकते, तो कोई बात नहीं, आप 2 घंटे बाद जब भी फ्री होंगे, पिछले 2 घंटे का आपने क्या एक्टिविटी किया वो लिखिए. शाम को रिव्यू कीजिए, हर वीक के एंड में रिव्यू कीजिए. आपको पता चलेगा कि आपका दिन कहाँ गया, आपका वीक कहाँ गया, आपका समय कहाँ जा रहा है. नेक्स्ट मेरा टेक होगा, ब्रांच में बैठना बंद कर दीजिए. अगर आपके पास पर्सनल ऑफिस नहीं है तो फिर आप ऑल्टरनेट डे आइए, बाकी टाइम आप ब्रांच में असिस्टेंट को बिठाइए. काम डेलीगेट होना बहुत जरूरी है, डेलीगेशन बहुत जरूरी है. अगर आप खुद सोचोगे कि मैं ब्रांच में बैठ के असिस्टेंट का भी काम करूं, डेवलपमेंट ऑफिसर का भी काम करूं, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वंस यू गेट इनटू ऑपरेशंस, वंस यू गेट इनटू रूटीन, यू विल नॉट हैव इनफ टाइम फॉर क्रिएटिव एक्टिविटीज, यू नो, व्हिच इज अपने लिए क्रिएटिव एक्टिविटी क्या है, रिक्रूटमेंट, हैंड होल्डिंग, नए एजेंट्स के साथ बैठना, काउंसलिंग करना, 1-to-1 उसको हेल्प करना, गाइड करना, उसके डाउट्स क्लैरिफाई करना. माय नेक्स्ट वुड एक्सरसाइज, कोशिश कीजिए नो कि आपका, और कोशिश नहीं कीजिए, आई एम सो सॉरी टू यूज इनकरेक्ट वर्ड, कोशिश मत कीजिए, आपका टारगेट होना चाहिए 251 एजेंट्स का. अगर कोई भी डेवलपमेंट ऑफिसर 250 से नीचे एजेंट अपॉइंट करता है तो यू विल नेवर बी एबल टू रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल. तो आपको हमेशा लगेगा आप अच्छा कर रहे हो,
लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं और आप चाहते हो कि आप परपेचुअली ग्रो करते रहो, एवरी ईयर आफ्टर ईयर एवरी ईयर ग्रो करो, तो मिनिमम 250 एजेंट का टीम रखो। नंबर 1, नंबर 20% एजेंट हमेशा ऐड करो, बिकॉज सम एजेंट्स विल गेट टर्मिनेटेड, सम विल बिकम CLIA, सम विल क्विट इंडस्ट्री, सम विल स्टैग्नेट। इसके लिए आपको 20% ऐड करना है। सो पहला है 250 एजेंट होना चाहिए, दूसरा है 20% हमेशा ऐड होना है। 20% एजेंट्स अपने को ऐड करना है, 250 का 20% विच इज 50 एजेंट्स आपको एवरी ईयर ऐड करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, build a team of large number of small agents. I am repeating, build a team of large number of small agents instead of trying to find 5 HNI agents. And some of you will disagree with me. I have no problem in that. But what I have learned in my 33 years of experience with LIC is, और मैं अपने लड़के को भी अपने इंडस्ट्री में यही बोलता हूँ कि तुम्हारे पास जितने भी क्लाइंट्स है उसमें से किसी भी एक क्लाइंट पे ज्यादा डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। अपने पास एक क्लाइंट के पास फैक्ट्री चलाता है, मैं उसको ये बोलता हूँ कि किसी भी एक क्लाइंट के पास से तुमको 10% से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आती। दैट्स ऑन द हायर साइड, आइडियली 5%। ताकि छोड़ के भी गया अगले साल तो आपको तकलीफ नहीं होगा ग्रोथ करने में, बिकॉज यू कैन इन अ कंट्री लाइक इंडिया ग्रोइंग एट 15-20% इज वेरी इजी, बिकॉज 5-7% से 5 और 7% से तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और अनदर 5-7% से आपने रियल ग्रोथ दिखाया तो टोटल आपका 12 से 15% का ग्रोथ एवरी ईयर आफ्टर ईयर एवरी ईयर हो सकता है। तो विच मीन्स मैं अपने लड़के को भी अपने बिजनेस में यही बोलता हूँ कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स पे डिपेंड, मतलब किसी भी एक क्लाइंट का रेवेन्यू 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके टोटल किटी का। सिमिलरली एज एन डेवलपमेंट ऑफिसर, अगर आपका एक एजेंट आपकी बिजनेस का 30%, 40%, 50%, 60% कर रहा है तो यू आर ऑलरेडी इन ट्रबल। आपने अभी रियलाइज नहीं किया होगा, couple of years down the line, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years down the line, जब आप रियलाइज करेंगे तब तक काफी लेट हो चुका होगा। So that's why build large number of small agents. इसका दूसरा फायदा क्या होता है मालूम है? जनरली बड़े छोटे जो एजेंट्स होते हैं ना, इनको म्यूचुअल फंड का भूत सवार नहीं होगा, वो MLM में नहीं जाएंगे, कोई दूसरा बिजनेस नहीं चालू कर लेंगे। वो उनकी भी दुनिया छोटी होती है। वो एक बार ZM क्लब मेंबर बन गए तो ZM में पड़े रहेंगे, वो CM बन गए तो CM में पड़े रहेंगे, गैलेक्सी क्लब मेंबर बन गए तो गैलेक्सी क्लब मेंबर बने रहेंगे। तो आपके साथ वो टिके रहेंगे ज्यादा समय तक के लिए, इंस्टेड ऑफ हैविंग वन एजेंट हु इज डूइंग मल्टीपल TOT और वन एजेंट डूइंग और 3 agents doing 70% of your business. This would be incorrect strategy. So these are some of my takes on, मेरे ख्याल से मेरे पास 10-15 मिनट का ही समय था, मैंने 10-15 मिनट को ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर दिया है। लेकिन ऑफ कोर्स मेरा ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और मेरा ट्विटर हैंडल आपको दिख रहा होगा। आप मेरे साथ ट्विटर पे जुड़ जाइए, आप मेरे साथ ईमेल आईडी मेरा दिख रहा है आपको anilj@lic@gmail.com। आप ट्विटर पे मेरे को ज्वाइन, मेरे ट्विटर हैंडल पे मेरे को फॉलो कीजिए मेरे, और बाद में मेरे को आप एक ईमेल डाल दीजिए जो आपका ट्विटर हैंडल है। मैं आपको मेरे मेलिंग आईडी में मेरे ऑफिस वाले मेरे को आपको ऐड कर देंगे मेरी मेलिंग लिस्ट में। ऑफ कोर्स विल कीप ऑन गेटिंग सम इनपुट्स फ्रॉम मी from time to time. I think this is what time permits me today, but not before thanking once again all of you, including Lazarus Dice Academy, Lazarus, Ashish Banjara, Ajay Arora sir, Murli Mehta ji, and Ranjit and everyone and all the participants. Congratulations to one and all once again. Thank you, Lazarus. Thank you for giving me time and considering me good enough to be a guest of yours. Thank you so much. Thank you very much. Sir, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Now I request our Lazarus sir to take over the session. But before he starts, I just want to mention you one thing. Like Anil Jha sir ने बताया pre-sale control sheet. Like that, Lazarus sir has done a record in Birla Sun Life when in 3 months he had recruited 3,000 agents, and that is also historic. So I request him to share that experience also and take over the session. So welcome Lazarus Dias sir. Thank you Ashish. Thanks Satan. Okay friends, so let us begin. I'll start with मतलब तो आपका सबका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने, आई एम जस्ट म्यूटिंग एवरीबॉडी। ओके, तो सबसे पहले तो आपको मैं हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मतलब ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया और ये सोचा कि बेसिकली ऐसे समय में भी कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड हमको माइंडसेट रखना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं, ऑलवेज मैं कहता हूं कि बेसिकली बहुत कम लोग होते हैं जो नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचते हैं। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
और पॉजिटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना बहुत इजी है, बट अदरवाइज ऐसे वाले सिचुएशन में अगर हम लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, एक्चुअली फ्रेंड्स मैं आपको कहता हूँ जैसे अजय अरोड़ा सर ने कहा, वैसे एक्चुअल लॉकआउट होने के बाद बहुत ज्यादा हम लोग बिजी, मतलब मैं खुद भी बहुत ज्यादा बिजी हो रहा हूँ। ऑलमोस्ट मेरे करीबन हर 2 दिन में 3 वेबिनार्स होते हैं ऑलमोस्ट पिछले अभी 3-4 हफ्तों से ये चल रहा है। और प्लस जितना रिक्वेस्ट आ रहा है उसका मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ, काफी लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे। तो ये सब जो कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं, आई थिंक इट इज गुड दैट वी हैव जॉइंड। और इसमें जैसे अनिल झा सर ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों में अनिल झा सर को बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम है ये प्योरली इम्प्लीमेंटेशनल है, नॉलेज इसमें बहुत कम रहेगा, ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। आई थिंक दुनिया में नॉलेज बहुत ज्यादा हो गया है आज के तारीख में, और मुझे लगता है कि अभी नॉलेज की एक्चुअली जरूरत नहीं है। अगर हम एरा 4 की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस इकोनॉमी, इट्स नॉट अ नॉलेज इकोनॉमी। तो देयरफॉर एक्सपीरियंस हम लोगों को कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अनिल सर हम लोग ने ये प्रोग्राम वीकली का रखा है, सो एवरी वीक 90 मिनट्स का प्रोग्राम रहेगा। उसमें एक चीज उनको इम्प्लीमेंट करना है, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग ने 5-5 लोगों का मास्टरमाइंड बनाया है। सो एवरी थर्सडे इवनिंग एक देयर विल बी अ कॉल टू चेक वेदर जो भी बोला था वो किया है कि नहीं। मैं काइजन, इस प्रोग्राम का नाम काइजन है, विच मीन्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। एंड आई एम सजेस्टिंग दैट हम लोग सिर्फ 1% का चेंज हर वीक में करें, बस जस्ट 1%। अगर 1% हम लोग हर वीक में चेंज करेंगे, और मुझे लगता है बेसिकली जिंदगी में और लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी जल की बूंदें सागर को भर देती है। सो इट इज नॉट दैट यू हैव टू डू समथिंग वेरी बिग। आई थिंक जापान हैज बीन अ वेरी गुड एग्जांपल कि हम लोग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स में कितना बड़ा मतलब हम लोग कर सकते हैं। और जैसे अनिल झा सर ने कहा वो बड़े एजेंटों का, तो ऑलवेज मैं आप लोगों को वो एक टॉपिक लेने वाला हूँ जिसको मैं रेडिश और एप्पल ट्री कहता हूँ कि अपने बाग में एप्पल ट्री होना चाहिए कि रेडिश होना चाहिए। और एप्पल ट्री में 10 साल के बाद फ्रूट्स आते हैं, रेडिश में 15 दिन में आते हैं, ऑल दोस थिंग। प्लस क्रिकेटर्स का भी अगर आप देखेंगे, वेदर इट इज विराट कोहली, वेदर इट इज सचिन तेंदुलकर, उनका टोटल जो स्कोर है वो सिर्फ 20% छक्के और चौके से आता है, 80% एक्का दुक्की से आता है। मतलब उसका एक्चुअल में आपको डेटा दूंगा। एंड इवन उनका अगर सेंचुरीज आप देखेंगे तो सेंचुरी मार के जो स्कोर है ना वो सिर्फ 20% है, 80% उनका नॉन सेंचुरी वाला है। सो ऑब्वियसली दैट वाज अ वेरी गुड इंसाइट, और उसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। तो दोस्तों लेट अस बिगिन दिस जर्नी। और आई एम सीइंग दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी हाईली एक्साइटेड। जैसे अनिल झा सर बोल रहे हैं आप बहुत मुझे भगा रहे हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग एंड आई लाइक, मतलब मुझे आप जितना पुश करोगे उतना मेरे को अच्छा लगेगा, जितना इम्प्लीमेंटेशन होता है उतना अच्छा रहेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी शायद इसके बारे में मैंने बात किया है पहले, बट मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ ने मुझे 2004 में 4 ब्रांचेस के लिए मुझे ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट किया था। हालांकि मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ ट्रेनिंग में सबसे बढ़िया और सबसे हाईएस्ट लेवल का ट्रेनिंग उसमें दिया जाता है, बट स्टिल उनका जो सीईओ, जो एजेंसी हेड था, he was राजेंद्र सूद करके, he was my customer, and उनको मैंने MDRT और काफी सारा ऐसा सब बताया था when he was vice president of Ion Exchange। and luckily फिर उसको मैक्स न्यूयॉर्क का इंटरव्यू के लिए वो गया, और वो कह रहे थे कि उन्होंने ऑलमोस्ट 80% बातें जो मैंने उनको बताई थी while selling the policy वो उन्होंने वहां बताई। and of course the foreign people who are taking the interview are very excited। तो जब मैंने उनको बोला कि मैं बिरला सन लाइफ छोड़ दिया है एंड आई एम गोइंग टू बी इन ट्रेनिंग एंड सर आई वांट सम हेल्प फ्रॉम यू सिंस यू आर इन मैक्स, तो इमीडिएटली उन्होंने ऑर्गेनाइज करके 1 साल का ट्रेनिंग था, 4 ब्रांचेस का था, 4 ब्रांचेस में 4 लोकेशंस पे मैं कर रहा था। बट दोस्तों मैं आपको बोलने के लिए मतलब बोलना चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ कोर्स दे सेड दे गॉट गुड रिजल्ट्स, और उनको वो चाहते थे कि और 18 ब्रांचेस में करें। बट मैंने वो डिनाई कर दिया। मैंने कहा कि मैं वो ट्रेनिंग नहीं करूंगा, क्योंकि क्या मैंने ये देखा कि लोग आ रहे हैं, कंपनी ने पैसा भरा है और उनको कुछ भी उसमें पड़ा हुआ नहीं है, कोई आता है कोई जाता है, कोई कभी आता है, मतलब कंप्लीट काइंड ऑफ दिस थिंग। सो मुझे जब फीडबैक अच्छा नहीं मिलता है, आई डोंट लाइक टू डू द ट्रेनिंग।
तो मतलब फिर राजेंद्र सूद साहब ने कहा अरे सर, मैं बोला सर ने आप उनसे पैसा ले लो, एटलीस्ट 1000 रुपीज ले लो जो एंड में आप रिटर्न करो, बट आई वांट सम कमिटमेंट, कमिटमेंट नहीं रहता है तो सो प्राइमरली जैसे मेरे गुरुजी ने अतुल गोरे सर ने मुझे कहा था कि मनी इज नॉट बेसिकली फॉर एनीथिंग, इट इज फॉर द कमिटमेंट। जितना ज्यादा पैसा दोगे उतना ज्यादा कमिटमेंट आपका होगा। मैंने 1995 में मैं और खुद संतोष नायर ने जो सबसे पहले प्रोग्राम हम दोनों ने 95 में किया था हेलमेट फ्लैश करके, उन्होंने उस समय 60,000 लिया था, तो वो कमिटमेंट मतलब वो 60,000 के कारण जो रियल मतलब उसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन किया। So let's start with the journey today. I'll just share the screen. तो काइज़ेन हमने इसको नाम इसलिए दिया है कि बेसिकली कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड ये प्रोग्राम है। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों ने ऑलरेडी मतलब ये यहाँ पर अभी डालने का जरूरत नहीं है। कल आई थिंक एवरीबडी इन द ग्रुप हैज शेयर्ड व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस, और मैंने सब वो नोट कर लिए हैं, राइट। So one of the thing is that what are the 3 purposes of this program। ये प्रोग्राम का 3 पर्पस है जो हम लोग एक्चुअली एक साल में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले एक क्लियर विजन, एवरीबody ऑल ऑफ अस शुड हैव अ क्लियर विजन ऑफ द डेस्टिनेशन, कि एग्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, व्हाट इज दैट वी वांट टू अचीव। भले हम लोग बिजनेस रिलेटेड हमारा काफी सारा रहेगा, जैसे किसी ने बोला 200 एजेंट्स को रिक्रूट करना है, बट वो ठीक है। तो बेसिकली वो आज इस साल का बारे में हमको बात नहीं करना है कि 5 years hence, 10 years hence, 15 years hence आपको एक्चुअल अचीव क्या करना है, आपके लाइफ में आपको क्या अचीव करना है, वो एक हम लोग पिक्चर, क्लियर पिक्चर आपके सामने बनाएंगे। एवरी वीक हम लोग कुछ छोटी छोटी बातों से हम लोग चलेंगे, बट बीच में क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, तो पहले 4 सेशंस आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट को टाइट करने के लिए, किस प्रकार से फोकस करने के लिए वो टाइम मैनेजमेंट का जो डे वाइज प्लानिंग करना है वो हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग इमीडिएटली एक 20 ईयर विजन या 10 ईयर विजन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है कि अगर विजन हमारा बन गया, बट उसके बाद हमको फ्लाइट प्लान की जरूरत लगेगी, कि स्टेप बाय स्टेप, जिसको हम कहते हैं, एक को हम स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं, जो ओवरऑल मोटा मोटा मैक्रो लेवल पे हमको सोचना रहता है। दूसरा हम फ्लाइट प्लान कहते हैं। फ्लाइट प्लान का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप, जिसको टैक्टिकल प्लान कहते हैं बिजनेस में। टैक्टिकल प्लान रहेगा हु विल डू व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब जो क्वेश्चंस है उसका सवाल हमको मतलब आंसर करना पड़ेगा। तो हम लोग एक एक्चुअल फ्लाइट प्लान बनाएंगे। जीओआई भी रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपके साथ गोल सेटिंग किया है, बट वो गोल सेटिंग में हमने 3 साल का गोल सेटिंग किया है, बट वो गोल्स को अचीव करने के लिए हमको डेली बेसिस पे क्या स्टेप्स लेने हैं वो हम लोग एक सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द फ्लाइट प्लान। वी आर गोइंग टू डिसाइड अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस by which we can achieve our goals. And third is a compass. जैसे अनिल सर ने कहा प्रीसेल कंट्रोल शीट, ये कंपास है। सो मैं आपको बहुत सारे कंपासेस दूंगा, मैं खुद कंपास बनूंगा। हमारे एकेडमी में जैसा आशीष है, आशीष इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ बीइंग द कंपास। he will be monitoring and tracking, and very strict tracking will be kept on what you are doing and what you are not doing. तो ये सब हम लोग तो कंपास मतलब हमको बीच में चेक करना रहता है कि जो हम रास्ते पे चल पड़े थे या निकले थे, एट व्हाट, जैसे मुझे पुणे जाना है, 3 कलाक में पहुंचना है, तो आई कांट जस्ट गो एट माय प्लेजर। आई हैव टू कीप ट्रैक एवरी आवर वेदर आई एम डूइंग those many kilometers or not, otherwise I have to tell the driver either to move fast or to be slow. तो ये कंपास रहेगा। सो प्राइमरली 3 ईयर जो रिक्रूटमेंट प्लान है ना, ये हमारा विजन है, जो ऑलरेडी आप लोगों ने मतलब जो हमारा एरा 4 के सेशंस में हम लोग ने ऑलरेडी किया है। इसको थोड़ा सा मैं हर एक के लिए ट्विक करूंगा, हर एक का इंडिविजुअल लेवल पे ट्विक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फ्लाइट प्लान आएगा, और फ्लाइट प्लान में हम लोग बहुत सारे प्रिंसिपल, सिद्धांतों का हम यूज करेंगे, बहुत सारे प्रिंसिपल्स यूज करेंगे, सो दैट वी आर एबल टू अराइव एट द डेस्टिनेशन जो भी। और फ्लाइट प्लान में एक और चीज जो हम लोग करने वाले हैं वो है प्रिडिक्टेबल सक्सेस। तो जैसे प्रिडिक्टेबल सक्सेस के बारे में हमने बात किया था, तो प्रिडिक्टेबल सक्सेस रहेगा। हम लोग एक्चुअली फिजिबिलिटी, जो भी हमने गोल लिया है वो गोल फिजिबल है कि नहीं, उसको हम लोग चेक करेंगे। और शायद आपका आने वाला 1 या 2 सेकेंड वाला मास्टरमाइंड मीटिंग में ये फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में मैं लीडर्स को बताऊंगा किस प्रकार से वो करना है। And finally we will have a compass, so that in the compass we are able to track, कि हम लोग ट्रैकिंग बहुत इजीली कर सकेंगे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या है ना, मतलब बेसिकली हम सक्सेसफुल, और मैं समझता हूँ
आप लोगों में से काफी लोगों ने मतलब ये किया है कि मतलब इसके बारे में जिक्र हो रही है, कुछ लोगों ने आपके जो एक्सपेक्टेशंस में लिखा हुआ है। बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ ना, आई वुड लाइक टू से वन थिंग, whatever plan we have, should it be scientific or unscientific? I mean, the question is very simple, that it has to be scientific, right? Should it be process oriented or ad hoc basis? मतलब ऐसे process oriented स्टेप बाय स्टेप कुछ होना चाहिए या एड हॉक बेसिस पे? अगर हमारा काम हम एड हॉक बेसिस पे करते हैं, जब मन आया, जब सोचा, जब कुछ किया, नहीं किया, मूड हो गया तो किया, नहीं हुआ तो नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सिद्धांत होना चाहिए, कुछ प्रोसेस होना चाहिए, और वो प्रोसेस रिलेटेड अगर हम करते हैं तो वी कैन बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। अगर मुझे अभी पता चले, मतलब एवरी वीक मुझे पता चलना चाहिए कि मैं दिसंबर को या मार्च को फेल होने वाला, अगर मुझे एवरी वीक नहीं पता चलेगा तो प्रॉब्लम है। तो ये एवरी वीक पता चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट और आउटपुट जो है उसका कोरिलेशन हमको ढूंढना पड़ेगा। और इनपुट और आउटपुट मतलब हम इनपुट मतलब जितना लोगों से मीटिंग करना है, मुझे अगर 200 एडवाइजर्स रिक्रूट करना है तो मुझे मीटिंग कितना करना पड़ेगा, और वो मीटिंग करने के लिए मेरे पास टाइम कितना है, समय कितना है, ऐसे हम लोग एक बार फाइनल करते हैं। और एक बार फाइनल हो गया तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि आप मीटिंग कितना करेंगे प्रोस्पेक्ट्स के साथ, और वो मीटिंग फिर हो रहा है नहीं हो रहा है हम लोग मेजर करेंगे। और फिर हमारा सक्सेस अगर हो रहा है एवरी वीक जो आपने प्रॉमिस किया है, तो फिर आपका रिजल्ट डेफिनेट आ जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आपको वही वीक में पता चलेगा कि मेरा रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि मैं वो जो करना है वो मैं मेरे तरफ से इनपुट जो है वो मैं नहीं कर रहा। सेकंड, कंट्रोलेबल होना चाहिए, अनकंट्रोलेबल होना चाहिए ना। सक्सेस बेसिकली कंट्रोलेबल होना चाहिए, अनकंट्रोलेबल नहीं। मतलब मेरे को एक्शन में रहना चाहिए, कंटिन्यूस एक्शन में रहना चाहिए, और कंटिन्यूस एक्शन रहेगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। एंड बेसिकली मतलब वो सिस्टम के ऊपर होना चाहिए कि अनसिस्टमेटिक होना चाहिए। और मुझे लगता है आप लोग सब एग्री करेंगे दैट इट शुड बी बेसिकली सिस्टमेटिक। स्ट्रेसफुल होना चाहिए कि स्ट्रेसलेस होना चाहिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रेसफुल और स्ट्रेसलेस। तो हम लोग का जो भी काम है ना स्ट्रेसलेस होना चाहिए, क्योंकि जब वो कंसिस्टेंट, जब वो प्रेडिक्टेबल होता है ऑटोमेटिकली स्ट्रेसलेस होता है। जब वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है तो हमको बहुत स्ट्रेस आता है ना। फिर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है हमारे इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो कंसिस्टेंसी की नहीं है, भले वो एजेंटों का है, डेवलपमेंट ऑफिसर का है, तो कंसिस्टेंसी हम रखते नहीं। वीक ऑन वीक बेसिस, वीक ऑन वीक बेसिस, वीक ऑन वीक बेसिस जो हमको करना है वो एवरी वीक हम लोग करते नहीं है। तो एक कंसिस्टेंसी हमारे अंदर हमको लाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में अगर हम सोचते हैं तो ऑलवेज क्या है, इसके बारे में मैं टाइम मैनेजमेंट में आपको बताऊंगा कि अक्सर हमारा ध्यान शॉर्ट टर्म पे होता है कि मुझे इस साल का आईबी क्या होना चाहिए, मुझे इस साल का तो आप एकदम इस साल के ऊपर फोकस करेंगे तो आगे वाला जो पटरी है, क्योंकि हमको दो पटरी पे काम करना है, एक शॉर्ट टर्म पटरी पे काम करना है, दूसरा हमको लॉन्ग टर्म, वी हैव टू वर्क ऑन टू ट्रैक्स। one track will be the long term, one track will be the short term. We can't choose one for the other. So therefore हमको मतलब दोनों ट्रैक के ऊपर काम करना है। और वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे पहले 2 महीने, शायद 2 या 3 महीने ये लॉन्ग टर्म वाला ट्रैक रखने में जाएगा, तो आपको कोई रिजल्ट उसमें आएगा नहीं, बट डोंट वरी, क्योंकि हम लोग ने क्या होता है कि हम लोग अगर ट्रेनिंग लेते समय भी शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं। तो हम लोग 2 महीना, एटलीस्ट 2 महीना मिनिमम मुझे लगता है कि हमारा ट्रैक बिठाने में जाएगा, जिसमें आपका लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है ना वो आपका बहुत बढ़िया होगा। ओके, सो डोंट वरी, डोंट ट्राई टू बी अपसेट, क्या कुछ हो नहीं रहा है ऐसा सब। दूसरा क्या है कि हमारा सक्सेस अगर एक बार हो गया ना वो रेप्लिकेट होना चाहिए, हम डुप्लीकेट कर सकना चाहिए। मतलब मैंने अगर एक पर्टिकुलर वे से अगर एजेंट अपॉइंट किए हैं, so I should be able to replicate and duplicate the processes and it should be scalable। ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि मीटिंग करना पड़ेगा वगैरह वगैरह सब है ना, ये बेसिकली सिर्फ 1 साल के लिए है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 1 साल में अगर आप तहे दिल से बहुत ही मेहनत से if you promise me that in this year you will work very hard on doing these meetings and completing this, because you have to do it first। okay, तो अगर हम लोग करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका उसका आगे आप उसको डेलीगेट कर सकते हो और आपको स्केल अप करने के लिए बहुत इजी रहेगा। जैसा आप अभी अकेले कितना मीटिंग करेंगे वो पॉसिबल नहीं है, तो हमको चाहिए कि अगले साल शायद अगले साल हमको कुछ अपॉइंट करना पड़ेगा, कुछ लोगों को, कुछ स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ेगा ये पूरा काम करने के लिए, जो पॉसिबल इजीली रहेगा।
क्योंकि आप लोग एक बार एक बार आप लोग ट्रैक पे आते हो, वंस यू ऑल आर ऑन ट्रैक, इट बिकम्स इजी टू इम्प्लीमेंट इट ऑन अदर्स, अदरवाइज हमारा खुद का ट्रैक रहता नहीं, हम स्टाफ रखते हैं बट उससे फिर हमको उतना जो रिस्पॉन्स है वो नहीं आ सकता है। परसों ही मैं वेंकट जी का स्पीच सुन रहा था, शायद वो एसबाफ को उन्होंने स्पीच दिया था, उन्होंने कहा कि मैं ट्राई किया ये रेप्लिकेशन करने के लिए, कुछ लोगों को लगाया, बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल। तो वो सक्सेस इसलिए नहीं आता है बिकॉज हम खुद है ना वो माइंडसेट और वो लेवल का काम जब हम लोग नहीं कर रहे रहेंगे, तो दूसरा जो स्टाफ से हम लोग जो करेंगे वो हमको फिर कर हम लोग नहीं सकते, राइट। तो इसके लिए इस साल में मेजर हमारा फोकस रहेगा कि आपका पूरा ये साल आपका पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल डिसिप्लिन और पर्सनल उसके ऊपर निर्भर रहेगा। सो एवरीथिंग विल बी डिपेंडिंग ऑन गेटिंग यू, क्योंकि आप कितने अच्छे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी टीम कितनी अच्छी होगी, हाउ ग्रेट यू आर, हाउ गुड यू आर, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ गुड अ टीम यू विल हैव। यू विल गेट वेरी वेरी गुड पीपल टू वर्क फॉर यू। अच्छे लोग आपको मिलेंगे बशर्ते कि आप खुद वो क्वालिटी और वो लेवल के हो और आपका बॉडी लैंग्वेज वो लेवल का है, तो ऑटोमेटिकली आपका वो हो जाएगा। ओके, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका जो जॉब के तरफ और आपके रिक्रूटमेंट के तरफ जो आपका नजरिया है तो वो नजरिया को कंप्लीट में शिफ्ट करना चाहता हूँ। कंप्लीट में मतलब आप जो सोचते थे आपके जॉब के बारे में या आप जो सोचते थे आपके बिजनेस के बारे में, वो कंप्लीट टोटल वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और वो ट्रांसफॉर्मेशन होने के वो ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए फिर आपको बहुत ही मतलब काम करना पड़ेगा। बट एक बार आपका पर्सपेक्टिव ऑलवेज क्या होता है ना, जैसे सोच होती है वैसे ही हमारे एक्शन होते हैं। तो हम सोच बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे शब्द बदलते हैं, हमारे एक्शंस बदलते हैं, हमारे हैबिट्स बदलते हैं, और उसी प्रकार से हमारी जो एटीट्यूड है वो कंप्लीटली चेंज होता है। मैंने एक पाया है कि आपके पास नॉलेज कितना है और स्किल कितना है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं देखा हूँ दोस्तों, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में मैं बहुत ट्रेनिंग करता हूँ, तो प्राइवेट इंश्योरेंस में एजेंट्स की जो क्वालिटी है डेफिनेटली बहुत हाई है, बहुत हाई इन टर्म्स ऑफ बोथ नॉलेज स्किल का। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे लोग मैं मेरे ट्रेनिंग में एक बंदा था जो एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था जो एजेंट बना, बट क्या उनके पास स्किल और नॉलेज होने के बावजूद है ना उनको सक्सेस नहीं मिलता है। सक्सेस इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि दोस्तों हमारे इंडस्ट्री में एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, और शायद ही कोई ट्रेनर है जो एटीट्यूड के ऊपर काम करता है। आपका एटीट्यूड चेंज करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। हम लोग जब IDBI फेडरल में जब गए थे फर्स्ट, हमारा उन्होंने 3 दिन का एक पायलट सेशन रखा था देखने के लिए कि हम लोग कैसे ट्रेनिंग करते हैं। और वो पायलट सेशन में फर्स्ट डे मैंने ये पर्सपेक्टिव पूरा चेंज कर दिया, बिल्कुल कोई इंश्योरेंस की बात नहीं कही, और पैराडाइम के ऊपर सेशन मैंने लिया जो आप लोगों के साथ भी मैं लेने वाला हूँ। और पूरा दिन का वो एक दिन का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें L&D जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट होता है कंपनी में, वो L&D हेड एक लड़की थी वो बैठी थी, सेल्स हेड बैठा था, काफी जोनल हेड्स बैठे थे, और ऑब्जर्वर्स करके एटलीस्ट 15 लोग बैठे थे जो हमको देख रहे थे, हम एक्शन जो मतलब ट्रेनिंग कर रहे थे। और ये लोग बहुत ही मतलब जैसे ट्रेनर, मैं एक स्टैंड अप ट्रेनर हूँ, मतलब मैं ट्रेंड ट्रेनर नहीं, राइट, बट ये लोग जो L&D हेड वगैरह होते हैं वो बहुत मतलब ट्रेंड रहते हैं उनके सब्जेक्ट। तो वो नेक्स्ट डे जब लोग रूम में एंट्री करने लगे और जब सेशन शुरू हुआ, तो वो L&D हेड की जो मैडम थी उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कुछ बोलना है, और वो आगे आके फिर उन्होंने बताया, बोला कि मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग्स देखे हैं, बट फर्स्ट टाइम मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जो लोग कल आए थे और कल जाने के बाद आज सवेरे जब वो लोग आए तो वो लोग एक अलग बॉडी लैंग्वेज से आए। और दोस्तों वो एक दिन का हम लोग ऐसे चमत्कार काफी जगह पे किया है कि एक ही दिन में लोगों का पूरा माइंडसेट हम लोग चेंज करते हैं। और वैसे मतलब तो वो देखने के बाद ऑफ कोर्स अच्छा वहां पर हमको 15 के 15 ऑब्जर्वर्स ने अच्छा रिपोर्ट दिया, और इस वजह से हमको बहुत बड़ा काम जो हम कभी शायद सोचा नहीं था उतना काम हमने ये किया। या शरद, यू हैव एनी क्वेश्चन? सर नो क्वेश्चन, रॉन्गली हो गया, सॉरी अच्छा, सॉरी। ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये एक मतलब अपना पर्सपेक्टिव हमको चेंज करना है। दूसरा क्या करना है ना, हमको हमारे बिजनेस में सेकेंडली ये जॉब है करके अभी हमको सोचना बंद करना पड़ेगा।
उसके ऊपर मेरा एक सेशन है। बट बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्रिएटिव एंड इनोवेटिव अप्रोच लाना पड़ेगा हमारे जॉब और रिक्रूटमेंट। जिस प्रकार से पूरी करीबन हमारे पूरे अगर हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कहेंगे, करीबन 60,000 डेवलपमेंट ऑफिसर्स, एजेंसी मैनेजर्स वगैरह वगैरह। ओके, देयर आर अबाउट 60,000 पीपल who are agency managers whose job is basically to recruit agents. But अगर हम लोग उनके जैसा ही रिक्रूटमेंट का स्टाइल अगर अपनाएंगे तो फिर हमारा कोई यूएसपी नहीं रहेगा, हमारा कोई भी मतलब अलग अलग टाइप का एक अलग जो बोलते हैं ना ब्रांड जो है, वो अलग ब्रांड नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ इनोवेटिव अप्रोच यूज करना पड़ेगा, जो हम लोग आपको बताएंगे FR ऐप के जरिए से। क्योंकि जब आप किसी से एजेंसी की बात करते हो तो उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप एजेंसी की बात कर रहे हैं, और उधर से फिर अगर वो आपका एजेंट अगर बन जाता है। IDBI फेडरल में करीबन मैंने 2 मिनट का जो रोल प्ले करीबन 25-30 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ किया था। उनको जस्ट मैं थर्ड डे पे बुलाता था लंच के बाद, लंच के पहले, और उनको फिर वो प्रोसेस करता था। उसमें से 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट इमीडिएटली एजेंट बन गए। तो मतलब 2 मिनट का अगर इंटरेक्शन से हम किसी को, और वो भी चार्टर्ड अकाउंट जैसे इंसान को अगर हम एक्टिवेट कर सकते हैं, तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज द थिंग। तो हम जो नॉर्मल घिसा पिटा व्हाटएवर वी आर यूजिंग द नॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, दैट वी शुड स्टॉप। सेकंड, मुझे लगता है कि जो हम लोग प्रोमिसेस करते हैं एजेंट बनते समय, whatever promises we make while we make an agent, those promises are to be made with a proper kind of matlab it should be documented, or it should be in a proper way. It should not be just for the sake of। तो हम लोग क्या करते हैं, एजेंट हमारा एजेंट बनना चाहिए करके काफी सारा, स्पेशली पीडीओस के लेवल पे वो होगा, so there will be some issues like that, that our approach or our communication or our promises should not be over the table। तो हम लोग जो प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिस को भी हमको किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा जो जर्नी है रिक्रूटमेंट का वो बताऊंगा। अभी लोगों का क्या होता है कि बेसिकली अगर आप देखेंगे एजेंट बनने के बाद जो हम उसको प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, बड़ा बड़ा सपना देते हैं। शायद उनको बड़े एजेंट्स जो 4 करोड़ कमा रहे हैं उनका हम बताते हैं उनको example। So what we do when we do recruitment, we tell them about how much they can earn. We show them agents who are earning 4 crore, and that is the way what happens is they have a very high opinion of the job, और उनको ऐसा लगता है कि यार ये एकदम धमाल में है और उसके बाद जब वो लोग मार्केट में जाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है। उनको उनकी इतनी पिटाई होती है जिसके बारे में हमने किसी ने उनको बताया नहीं है कि कितना हाई रिजेक्शन वाला ये बिजनेस है। We have never shown them about how high the rejection is in this business, and therefore they get और इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग टेक ऑफ होते नहीं, वो एजेंट बन के रहते हैं, बट वो लोग अपना जस्ट धक्का मार के एजेंसी करते हैं, कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन के साथ वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। So what happens is then people, the agents remain as it is, as as they are, and they start just managing to see if policies मिल गया तो ठीक है, if they get policy fine, if they don't get it's fine। Now what I don't want you to expect, मतलब आपको expect क्या करना नहीं चाहिए, don't expect कि कोई miracle हो जाएगा। ओके, एक प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके आपका कोई miracle होगा, ऐसा नहीं होगा। there will be no miracles। कोई शॉर्टकट में देने वाला नहीं हो। ओके, मैं ऑलवेज कहता हूँ the secret of success is there are no secrets। ओके, there are only principles and systems and habits। प्रिंसिपल्स और सिस्टम्स और हैबिट हम यूज करेंगे, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म है, बट सस्टेनेबल है, बहुत जबरदस्त है। मतलब ऐसा नहीं कि इस साल आप प्रोग्राम में है इसके लिए काम किया और अगले साल प्रोग्राम में नहीं है तो काम नहीं हुआ है सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली आई विल नॉट बी टीचिंग यू एनी शॉर्टकट्स। I'll be because the secret of success is there are no secrets, only there are principles, habits and system। so if you have that that's fine, that is what is going to be there। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है, सॉरी सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, काफी वॉइस ब्रेक हो रहा है जी सर, आवाज नहीं आ रहा है सर। सबको ऐसा हो रहा है? हेलो नो सर, वी आर क्लियर। क्लियर ना? नहीं क्लियर है, आवाज क्लियर है। उनके यहाँ उनके एंड पे आपके यहाँ थोड़ा, अभिषेक जी आपके यहाँ देख लो ना जरा, आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर।
ओके, बट एनीवे मुझे बताते जी सर, जाइए जी सो दैट ओके सर, बताते जाइए सो थैंक दैट यू आई सर, थैंक यू वेरी मच सर। या ओके। दूसरा क्या है ना, कोई भी इमीडिएट रिजल्ट के लिए आप बिल्कुल मत देखो, डोंट लुक फॉर इमीडिएट रिजल्ट। और हमारा इमीडिएट रिजल्ट के चक्कर में ही सब एक्चुअल प्रॉब्लम होता है। सो व्हेन वी लुक फॉर इमीडिएट रिजल्ट्स, दैट इज वेयर द होल प्रॉब्लम स्टार्ट्स। व्हाई वी आर हैविंग अ ईयर लॉन्ग प्रोग्राम, सो दैट फर्स्ट 3 months इज बेसिकली टू डू लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क, लॉट ऑफ, जैसे मुरली मेहता सर और हम लोग दोनों जो मतलब बात करते हैं, अभी BITV में भी हम लोग बोर्ड मेंबर्स है। ऑलवेज हम लोग कहते हैं रूट्स एंड रूट्स, मतलब रूट्स है कि हिंदी में रूट्स को क्या बोलते हैं पता है, बट रूट्स जो है ना जमीन के नीचे जब उगते हैं, रूट्स जितना स्ट्रांग होंगे उतना ही फ्रूट्स ज्यादा अच्छा रहेंगे। और जो रास्ते रहेंगे, तो रूट्स को हम लोग पहले स्ट्रांग करेंगे। 1-2 महीना ज्यादा नहीं टाइम लगेगा, बट 1-2-3 महीना, मैक्सिमम 3 months, मिनिमम 2 months में हम लोग वो करेंगे। बट डोंट एक्सपेक्ट एनी इमीडिएट रिजल्ट। हम लोग को एक क्विक फिक्स आइडियाज में देने वाला नहीं हूँ कि ऐसे करो या ये टैबलेट खाओ और आपका धनाधन रिक्रूटमेंट हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आपका कोई रॉन्ग आइडिया से आपको आना नहीं चाहिए, बिकॉज एक्सपेक्टेशन वेरी क्लियर है। मेरे पास कुछ वेरी प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है, उसको आप अगर करेंगे थोड़ी दिक्कत होगी। सो आई हैव अ साइंटिफिक अप्रोच व्हिच आई हैव डन। इट विल बी लिटिल प्रॉब्लमेटिक इन बिटवीन टू गेट इनटू द ग्रुप। मतलब एक बार वो आपको उसमें बैठने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होगा, क्योंकि अभी तक जो हम कर रहे हैं ना उससे हम लोग कंफर्ट जोन में है। तो इट माइट बी लिटिल प्रॉब्लमेटिक, बट आई थिंक यू शुड टेक दैट एफर्ट। और वो तकलीफ आपको लेनी चाहिए, क्योंकि वो करेंगे तो ये कोई अमेजिंग रिजल्ट्स भी आपका नहीं आएगा, राइट। हाँ, बट मैं क्या प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको इनोवेटिव क्रिएटिव सोल्यूशन में दूंगा, सिस्टम्स और प्रोसेसेस दूंगा, सस्टेनेबल कंसिस्टेंट मेथड दूंगा। मतलब वो मेथड ऐसा नहीं कि आप ट्रेनिंग में है तो आपका काम चलेगा उसके बाद नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। वो सालों साल आपका फिर काम होते जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रेडिक्टेबल रिक्रूटमेंट सिस्टम्स में दूंगा, और साइंटिफिक जो अप्रोच है वो साइंटिफिक अप्रोच में दूंगा। दैट इज व्हाट इट इज। तो जैसे फॉर्मेट हमने किया है, 90 मिनट का सेशन होगा एवरी मंडे 10 to 11:30। आज थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करेंगे आधा घंटा, क्योंकि इनॉग्रेशन था इसलिए, बट अदरवाइज 10 to 11:30। और अगर कोई सेशन थोड़ा बड़ा भी रहेगा, मतलब 90 मिनट्स के लिए स्ट्रिक्ट नहीं रखना है, आप लोगों को मैं 1 वीक एडवांस में बताऊंगा कि अगला सेशन अगर 2 कलाक मिनिमम, मतलब 2 कलाक का हो सकता है। मास्टरमाइंड इम्प्लीमेंटेशन आपको हर थर्सडे को करना है, इवनिंग को 30 मिनट्स का। ओके, हर वीक में मैं एक वन टाइम असाइनमेंट दूंगा। वन टाइम मतलब एक बार करना है, ओके, जो वही वीक में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं एक हैबिट दूंगा जो हर 15 दिन में आपको हैबिट शुरू करना है। ऐसे करके पूरे साल में 12 से 13 कंटिन्यू जो डेली बेसिस पे आपको करना है, वो हैबिट्स मैं दूंगा जो आपको कंटिन्यूसली इंप्लीमेंट। तो एक पहला हम लोग एक 15 दिन के लिए एक ही हैबिट लेंगे, वो हैबिट आपको कंटिन्यू करना है। फिर दूसरे 15 दिन में दूसरा हैबिट दूंगा, तो उसमें क्या रहेगा, आपको दोनों हैबिट्स को करना पड़ेगा। फिर तीसरा 15 दिन में भी तीसरा आएगा, फिर तीनों करना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे करके हम 12 से 13 हैबिट जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और हर सेशन के बाद एक ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म रहेगा जो मैं डालूंगा, वो आपको इमीडिएटली वो फीडबैक फॉर्म ऑनलाइन भरना है। ओके, दूसरा असाइनमेंट है, एक बुक आपको हर महीने में पढ़ना है। जो बुक क्या पढ़ना है वो मैं आपको दूंगा, और उसका फिर हम लोग आइदर मास्टरमाइंड मीटिंग में या सेशन में उस बुक को रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे। इसके अलावा कुछ वीडियोस आपके सेशन के रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं दूंगा, तो वो भी आपको एवरी वीक मैं भेजूंगा। तो वो सेशन से रिलेटेड रहेगा, वो वीडियोस आपको देखना है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ उसी का ज्यादा विस्तार में डिस्कशन जो वो वीडियो में होगा। तो इसके लिए वो आपको आप देखेंगे तो हमारा सेशन में जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में अच्छा आपको जानकारी आएगी। और महीने में मैं चाह रहा हूँ कि एक मूवी हम लोग देखें, और वो मूवी के ऊपर कुछ लर्निंग्स और उसका क्या व्हाट यू कैन टेक, मतलब अपने बिजनेस में उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा वो। सो Prabhar ji, what I will be doing is whatever I am talking in Hindi, which is there on the PDF, I will not again be speaking in English. Sorry, in the PPT, I will not be talking in Hindi. But whatever Okay. is I am talking in Hindi, I am talking in Hindi, which is not given in the PPT. I will kind of translate it. Okay, sir. Okay, sir. हाँ, Okay, sir. फिर क्वार्टरली रिपोर्ट कार्ड जनरेट होंगे, मतलब आपको हर 3 महीने में एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा,
और ये रिपोर्ट कार्ड आपके बच्चों से और आपके वाइफ से, हस्बैंड से आपको साइन करके लेना पड़ेगा। ओके, हम लोग बच्चों को बहुत टपली मारते हैं जब वो लोग अच्छा मार्क्स नहीं लाते, तो ये आपके बच्चों से आपको साइन करके मुझे फिर एक स्कैन कॉपी आपको भेजना पड़ेगा। साल के बाद हम लोग एक फुल ईयर का इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट कार्ड आपको जनरेट करेंगे। देखो आपका काम हुआ कि नहीं हुआ या कितना हुआ ना, वो आपके रिपोर्ट कार्ड से ही पता चलेगा। बिकॉज रिपोर्ट कार्ड में हम दो चीज ट्रैक करने वाले हैं, एक तो आपका जो भी आपको इम्प्लीमेंटेशन दिया था, जो हैबिट्स दिए थे, या जो भी वन टाइम असाइनमेंट दिया था, हर चीज आपने कितना लेवल, कितना परसेंट किया, वो जितना परसेंट आप उसको इम्प्लीमेंट किया रहेगा उतना ही परसेंट आपके लाइफ में मतलब परफॉर्मेंस आ जाएगा। एक तो परफॉर्मेंस आएगा, दूसरा क्या है ना, हमको फीलिंग आती है। मतलब एक परफॉर्मेंस के अलावा हमको एक फीलिंग आती है कि बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा है, तो वो फीलिंग आपको आएगी। और अंत में मैं आपको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दूंगा ये ईयर लॉन्ग प्रोग्राम का। ओके, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका लाइफ बहुत स्ट्रेसलेस रहेगा। स्ट्रेस आपके लाइफ में जो भी है, मुझे पता है कि कितना स्ट्रेस रहता है, बट ये स्ट्रेस आपका कंप्लीटली निकल जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ। आपकी एक्टिविटी जो है रिक्रूटमेंट की, वो जो आज तक जितनी नहीं रही उतनी ज्यादा आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपका लाइफ पूरा पीसफुल और काम हो जाएगा। आपका बिजनेस परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो आपकी चेंज हो रही है। योर कम्युनिकेशन विथ योर एजेंट्स and with the people whom you are recruiting, with the prospects, is going to change, and therefore there will be very high level of business performance and predictable success with balanced life. ये हमारे एकेडमी का टैगलाइन है कि प्रिडिक्टेबल सक्सेस विद बैलेंस लाइफ। तो मैं आपको एटलीस्ट 6 महीने के अंदर, 6 महीने के मुझे 6 महीना लगेगा सब आपकी एक्टिविटी ट्रैक करके, बट 6 महीने के अंदर मैं आपको कुछ फॉर्मूला दूंगा, और वो फॉर्मूला आपके हर गोल सेटिंग में आप अगर यूज करेंगे तो कभी भी जिंदगी में आपका रिजल्ट जितना आपने प्लान किया है उतना नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, सो इट विल बी डेफिनेटली प्रिडिक्टेबल सक्सेस। आपको अभी क्या करना है, आपको सब ऐसे सेशंस अटेंड करना है विदाउट फेल। ओके, मास्टरमाइंड मीटिंग्स अटेंड करना है, कोऑपरेट करना है। आज मैंने देखा 2 लीडर्स ने, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट 2 लीडरों ने सवेरे सवेरे लोगों को रिमाइंडर डाला ग्रुप में कि आज सेशन है। आई रियली लाइक दैट, थैंक यू वेरी मच, एंड आई वुड लाइक द मास्टरमाइंड लीडर्स कि सवेरे एक आप रिमाइंडर डाल दो सो दैट इट हेल्प्स। आपका जो असाइनमेंट है वो वीक के अंदर ही कंप्लीट करना है, और आपका दिन जो है ना वो प्लान वाइज, जो डे वाइज मैंने जो बताया है, मतलब जैसे सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन डे है, जैसे फैमिली डे है, जैसे रिक्रूटमेंट डे है, एजेंट्स मैनेजमेंट, ये जो मैं बताता हूँ ना उसको आप रिलीजियसली करो। डोंट वरी कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, वो सब मत वरी, आप एकदम 100% ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट रिलीजियसली, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू डू दैट। क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि आपका ये पूरा प्रोग्राम जो है ना वो 2 चीजों के ऊपर टिका हुआ है। दिस होल प्रोग्राम इज डिपेंडेंट ऑन 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन थिंग इज वेदर यू आर डूइंग द डे वाइज प्लान। तो सबसे पहले है कि आपका डे वाइज जो भी दिन हम लोग प्लान कर दे, आपको फ्रीडम है, मैं ऐसा फिक्स नहीं करूंगा, बट मंडे को हम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन डे तय कर रहे हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन डे क्या होगा, क्यों होगा, कैसा होगा, उसमें 12-13 चीज आपको करने हैं, उसका लिस्ट मैं दूंगा। तो आपको मंडे को जब आप उठ जाएंगे, आपको सेशन अटेंड करना है, उसके बाद वो 1 2 3 4 5 6 ऐसा जो टिक मार्क करके आपको वो 12-13 चीज आपको करना है। फिर एजेंसी मैनेजमेंट डे को अलग रहेगा, रिक्रूटमेंट के लिए अलग लिस्ट रहेगा। ऐसा हर एक दिन के लिए एक चेकलिस्ट रहेगा। आई विल बी प्रोवाइडिंग अ चेकलिस्ट फॉर एवरी डे। सो इफ यू सिट एंड डू दैट चेकलिस्ट, इट विल बी दिस। अनिल झा सर ने बहुत ही ये कहा है। अभी मुझे एक इशू क्या दिख रहा है कि आजकल है ना इतने सारे फ्री सेशंस और इतने सारे सब हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग उसके अंदर मतलब मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे एजेंट्स भी काम वाम छोड़ के है ना पूरा ये सेशंस के पीछे लगे हैं। सेशंस हो रहे हैं, दे आर वेरी गुड एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड, बट मुझे लगता है आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि वीक में कितना समय आप सेशंस में देंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम, सेशंस आप देख लो। मुझे लगता है कि कोई आपको सेशन दूसरे कोई सेशन देखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये अगर आप, क्योंकि इसमें बहुत इंटेंस काम करना है, बहुत ही वी विल बी, सो देयर आर लॉट ऑफ सेशंस व्हिच आर गोइंग ऑन फ्री। आई नो दे आर वेरी वैल्यूएबल एंड important, but you'll have to decide certain time कि how much time am I going to give for that, because I want maximum time and focus to be given. In fact, next 3 to 4 weeks, you will have to really give
लॉट ऑफ टाइम, है ना। आप लोगों को अगले 2-4 वीक्स में बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर इम्प्लीमेंट हम नहीं करेंगे 2-3 महीना जो एकदम इंटेंस काम नहीं करेंगे, तो फिर शायद कुछ हमारा मिस हो जाएगा. सो दैट इज वन. सेकंड इज, I don't know how many of you are already in some other training program. जनरली मैं अलाउ नहीं करता हूँ कि ये मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, तो और मतलब किसी का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, बट अगर है भी तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन वाले कुछ रहेगा नहीं. बट आप खाली एक डिसाइड कर लो कि वीकली आप कितना टाइम कोई सेशन या ट्रेनिंग में देंगे, उतना टाइम आप दे दो, उससे ज्यादा मत दो. डे वाइज जो प्लानिंग, जैसे अनिल झा सर ने कहा, मेरा खुद का मैं आपको चार्ट बताऊंगा. मेरा भी एवरी हाफ एन आवर का मेरा ट्रैकिंग रहता है कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. सो आई एम आल्सो डूइंग माय हाफ आवरली ट्रैकिंग, because that shows us whether we are on track or not. So I will show you that chart one day. I have started this from last year, 2 years back. और मेरा एक ग्राफ बन जाता है जो मेरे को बताता है कि कौन से एरिया में मैंने कितना समय दिया. Then I have to decide whether what I should do or not. तो एक रोटी वाला जो एग्जांपल है, मैं अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. ओके. दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो डे वाइज आपको प्लान इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. सेकंड इंपॉर्टेंट प्लान है कि आपको जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कॉल्स, मीटिंग जो भी करना है वो आपको करना रहेगा. और वो करने के लिए जो ऑनलाइन वीडियो वाला जो क्लासेस मैंने दिया है, वो क्लासेस का वीडियोस वगैरह आपको देखना पड़ेगा. वो मैं आपको बताऊंगा. वो जैसे मैं कहता हूँ ना, उस सीक्वेंस में आप देखो. एक बार पूरा अगर आप देख लेंगे तो भी चलेगा, बट अदरवाइज सो आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू ऑल द वीडियोस एट वंस वेरी रैपिडली, just to get an idea of it. And then what we'll do is weekly we'll be telling you which videos to see, so you can accordingly go with that. Okay. So and then we will have okay. So far any questions up to here? Any doubts? Any questions? Any? Yeah. Webinars have become another comfort zone. Correct. Yeah. Very good. Very good. So are you okay with all the expectations? What I will be delivering, what are the things, See, it is very important to be very clear in the beginning only. No, weekly there will be no movie. There will be a different movie every month. I will be telling you which movie. मैं उसका लिंक भी भेजूंगा, either YouTube जो भी जहाँ का रहेगा. Very good. Okay. Yeah. Don't worry, Sachin. Pre-sale control sheet से भी ज़्यादा. Pre-sale control sheet is more of agents. अभी सबसे पहला मैं आपको कंट्रोल करना चाहता हूँ, उसके बाद एजेंट्स का कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा. बट ये ऑनलाइन कोर्स का मैं बताऊँ. यस बोलिए. एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग, प्लीज अनम्यूट. यू कैन. सर ये वीक के लिए एक्टिविटी क्या रहेगी? मैं बताता हूँ ना बॉस, अभी बताता हूँ. एवरी वीक जो एक्टिविटी है ना, मैं ऑलरेडी उसका पीपीटी बनाया हूँ, बट उसके पहला एक छोटा टॉपिक है, वो कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताऊंगा. अभी आज का जो टॉपिक है ना, उसके ऊपर चलते हैं. ये मैं खाली सिर्फ एक आपको ये कर दिया, मतलब एक्सपेक्टेशन. यस बोलिए. सर या I had a small doubt that you said that we will be able to recruit agencies without even talking about the agency. Yes. Right? Yes. Then a small question arose in my mind that how am I supposed to introduce myself if I am not supposed to talk about LIC agency? My introduction is itself, I am a development officer with LIC. So that how will change. I will introduce myself? That will change. We'll come to it. Okay. Because your designation is not important to people who are joining you. So we will be changing the introduction from designation base to a vision base. Okay. It will be a vision base. So he need not know who you are. He'll come to know at the end. We will at the end, second meeting या आप लोग जो अभी एजेंट को बता रहे हैं ना, वो आप थर्ड मीटिंग में बताएंगे, ऐसे मान के चलो. मतलब फर्स्ट 2 मीटिंग में आप वो सब कुछ भी बात नहीं करेंगे जो एक्चुअली आप बात करते हो. वो थर्ड मीटिंग में आएगा, बट वो थर्ड मीटिंग में आएगा. राइट. थैंक यू. सर ये जो गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. या सर एक्चुअली एक क्वेश्चन थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में तो
हालांकि अभी ऑफिसेज वगैरह स्टार्ट हुआ है, बट फ्रिक्वेंटली लोगों से मिलना इतना हो नहीं पाता है। तो इस केस में रिक्रूटमेंट को कैसे ले तो पाएंगे? मेरे को आप बताओ कि मैंने आप लोगों को सबको ये कोर्स के लिए रिक्रूट कैसे किया, राइट? So basically क्या है ना, what we are going to do, I'll tell you, we are not going to go into recruitment immediately, okay? We are going to do a lot of prospecting, and that prospecting, almost 200-300 prospecting we will do during this period, Yes. and the agency recruitment will start after that. But first, you know, how do you really approach and attract people? No, that is the first question. और वो मिलने की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी, ओके? तो बिना मिले फोन के ऊपर 2 मिनट आपको बात करना है FR ऐप लेकर, और उनको आपको एक्साइट करना है, कुछ बताना है। फिर वो लोग को 6 वीक वो लोग का आप उनको कॉल करना है, 6 वीक 30 सेकंड का कॉल करना है। एकदम सिंपल प्रोसेस है, राइट? तो 30 सेकंड जब कॉल करेंगे ना, वो लोग आपको पूछेंगे सामने से कि सर अभी वो ये करना कैसे है, नॉट टू वर्क कॉर्पस करना कैसे। तभी फिर आप उसको बोलेंगे कि सर उसके लिए मेरे को आपके साथ ऑनलाइन एक मीटिंग करनी पड़ेगी जिसको 40 मिनट लगेंगे, सो यू नो कैन आई, व्हाट टाइम कैन वी सेट इट अप। और फिर आप जूम मीटिंग या जो भी करके उसके साथ एक मीटिंग करेंगे। जो भी मैं बताऊंगा वो मीटिंग में भी आप उनको 4 सवाल पूछना है। इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं होगा, ना आपका FR ऐप में होता है, ना आपका फर्स्ट मीटिंग में। सेकेंड मीटिंग में, लास्ट में, सेकेंड मीटिंग में वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी बनाएगा खुद का, मतलब वो उसको एजेंट बनाने से पहले उसका 25 लोगों का प्रोस्पेक्ट लिस्ट बन जाए, और उसके बाद फिर यू नो एंड में बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो यू नो यू विल एंजॉय इट, सो डोंट वरी, इट्स so we'll do that, that is there. Yeah, any other? Good morning sir. Good morning. Yeah Sir, I have 2 questions, sir. Yeah. One thing is, now I have seen all those videos regarding recruitment. Okay. What is your first hand this experience of that? Just seeing the It was a beautiful experience, sir. Beautiful experience. Entirely it is different. Yeah. And the great thing is, it has started giving results. Correct. I have here and there I have implemented, but still I have got the results. The question is, can I use that system for my existing agents? Of course, yes. You should use it for your existing agent to activate them. I am going to tell you about that. मैं वो बताऊंगा. Okay. तो आपके existing agent को है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके existing agent को FR ऐप पे आप प्रैक्टिस कर सकते। देखो क्या हो, तो अभी एजेंट बन गए, वो भाग के नहीं जा सकते, तो हमारा जो प्रैक्टिस रहेगा वो एग्जिस्टिंग एजेंट के साथ करना है। Okay, thank you, sir. There one more question, sir. During this course, because you have designated it as a recruitment course. During the course, will you throw some light on agency management also? Yeah. I think see, primarily what happens is we are going to focus around 70-75% on recruitment. Why? You know, because your agency management will automatically happen for the new agent. For the old agent, because there was some wrong communication and you know the way they were brought in. Yes. But I'll give you this BCG model. No, I am showing you BCG model how to implement. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. And regarding GOIB goal setting for PDOs, I think there is something called goal setting में कैसा रहता है कि आपका अगर पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हमको कुछ बेसिस पे कुछ एडहॉक बेसिस पे कुछ फिगर्स लेने पड़ते हैं, और वो फिगर लेके हम उसको प्लान करेंगे। और उसके साथ क्या होगा, अभी आपको मैं बताऊं कि बाकी सब भी डेवलपमेंट ऑफिसर का किसी के पास भी सिर्फ गोल सेटिंग मतलब है ना कि मुझे इनकम कितना कमाना है वो मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, बट मुझे मीटिंग कितना करना है ना, वो किसी के पास अभी वो फॉर्मूला नहीं है, नाइदर पीडीओ के पास है, नाइदर किसी के पास है, क्योंकि शायद किसी ने, आई डोंट नो हाउ मेनी, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सो किसी ने रिकॉर्ड अगर रखा नहीं है कि कितने लोगों से उन्होंने बात किया, तो ये रेशो मिलेंगे ना, इसको रेशो कहते हैं। तो आपको सबको जो गोल सेटिंग का रेशो है ना 6 महीने में 7 महीने के अंदर आ जाएगा, जो एकदम आपके लिए बहुत जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर आपको रिक्रूटमेंट करने के लिए मोटिवेशन आएगा। आज मोटिवेशन नहीं आता है बिकॉज आपके पास रिकॉर्ड नहीं। So what happens when you start keeping records of how many people you are meeting, how many people you are calling? So I'm going to give you an Excel sheet where you will be keeping all this track. तो प्रीसेल हम लोग एजेंट के लिए बाद में करेंगे, पहला प्री रिक्रूटमेंट कंट्रोल शीट आपके लिए बनाएंगे, राइट?
वो कंट्रोल शीट में आप उसको इंफॉर्मेशन डालते जाइए तो ऑटोमेटिकली फिर उसका मतलब आपको ये मिल जाए। सर मैं जानना चाहूंगा, संजय गिलानी बोल रहा या हूँ, क्या हम लोग रिटेंशन पे भी कुछ फोकस करेंगे, हाउ टू रिटेन द एजेंट्स? सी रिटेंशन का मेरा बेसिक ओपिनियन ये है, व्यू है, इट कुड बी रॉन्ग इट कुड बी राइट, बट मेरा व्यू है कि रिटेंशन ऑफ एजेंट है ना, ये एक्चुअली रिक्रूटमेंट के टाइम पे ही डिसाइड होता है, नंबर 1। ओके, क्योंकि रिक्रूटमेंट के टाइम पे जिस प्रकार से हम कम्युनिकेट करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं या जो भी हम बताते हैं ना, तो वही रिटेंशन का इशू, मतलब उसकी जो बीच है वो उधर ही हमने बोई हुई रहती है। ओके, बट प्राइमरली रिटेंशन के लिए और भी अलग जो तरीके हैं जिसको हम एजेंसी मैनेजमेंट में करेंगे, तो एक तो हमको वो रेक्टिफिकेशन करना है, नंबर 1, क्योंकि उससे बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता है ना। So our communication while recruiting agent is causing a serious problem for retention. So we have to correct that at the root. That is one. Second is that we have to do a lot of other things for agency, retention and motivation. जो हम BCG मॉडल है ना, उसके लिए ही है। BCG मॉडल आपके पूरे एजेंट्स को मोटिवेट रखना और रिटेंशन रखना और उसका परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में ही है। So don't worry, that will be doing. मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों के कई सारे एजेंट्स जो हैं वो टर्मिनेट होते हैं, और अगर हम उनको वापस से रीइंस्टेट कराते हैं या रीअपॉइंटमेंट कराते हैं, जैसे जितने भी हम पुराने डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, अगर हम अपना रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो जैसे मैंने भी जो है किए हैं, तो लास्ट 20 इयर्स में ऑलमोस्ट आई हैव रिक्रूटेड मोर देन 250 एजेंट्स। अभी मेरे जो है एक्टिव एजेंट जो है 47 है। तो अगर मैं इन एजेंट्स को दोबारा से वापस इम्पैनल कराना चाहूँ एज एन एजेंट, तो मुझे किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए? तो वो रिक्रूटमेंट वाला जो प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करेंगे तो वही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। संजय जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी। यस यस, संजय जी आपने मेरे को बहुत अच्छा और एक आइडिया दे दिया। बेसिकली मैं एक चीज के ऊपर सिर्फ फोकस कर रहा था कि पिछले 2-3 सालों में जितने लोगों से आपने बात किया और जो लोगों ने एजेंसी नहीं लिया, बट अभी मुझे लगता है कि एक एडिशनल प्रोस्पेक्ट लिस्ट के लिए हमको लिस्ट बन सकती है। आई टेल यू, डेफिनेटली वो लोगों को हम वापस ला सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोल्ड मार्केट फर्स्ट, हम लोग क्या करेंगे, जितने टर्मिनेटेड एजेंट हैं उनको वापस वी विल रीच आउट टू देम, और उनको एक अलग तरीके से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, उनको एजेंसी के लिए बोलना ही नहीं है, जो FRF का रिलेटेड जो मैं बोलता हूँ ना, वैसे करके उनको आप डेफिनेटली रिक्रूट कर सकते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हाँ, शरद बोल रहा हूँ सर। अभी मैंने जो डिस्कशन सुना उससे मुझे एक लग रहा है कि मैं अभी जो रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, मैंने कुल लॉकडाउन में 50 लीड्स क्रिएट किए, उसमें से 12 लोगों के फॉर्म भी अपलोड कर दिए, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन जो भी अपलोड कर दिया। ओके, तो मुझे एक जानना है कि जो मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ वो कितना मेरे कोई एरर है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं रिक्रूटमेंट ऐसा करता हूँ, मेरे मोबाइल में कुल 13,000 नंबर है। आपका मैंने बहुत पहले करीब 2008-9 में एक सेशन सुना था कि आपके पास आपका सभी जो एग्जिस्टिंग आपके प्रोस्पेक्ट है उनका रिकॉर्ड 5 साल से ज्यादा रहना चाहिए जो आप उनको कॉल करते हैं। सो आई एम फॉलो दिस, वो चीजें मैं फॉलो करता हूँ, तो मुझे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मेरे पास 50 लीड्स है, हाँ, उसमें से मुझे 12 लोगों ने व्हाट्सएप पे सब सेंड कर दिया, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, बल्कि स्कैन करने के लिए साइन मैंने अपलोड भी कर दिया। और मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ इसके लिए अगर ले रहे हो तो मत लेना। अगर पैसा कमाना है, करियर बनाना है और लॉन्ग टर्म इनकम और आपका कोई गोल होगा वो अचीव करना है, तो ही एजेंट ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आप मेरा भी टाइम खराब करोगे और इंश्योरेंस एजेंसी को भी बदनाम करोगे। कैन आई करेक्ट और रॉन्ग? नहीं, अभी क्या है ना शरद, व्हाटएवर अभी आप लोग जो भी कर रहे हो ना, जस्ट बी विद दैट, क्योंकि क्या है वो एकदम से मैं ऐसा आंसर नहीं कर सकूंगा। आपने वो वीडियो ये लिया है ना, वीडियो का एक्सेस मिला है ना? हाँ। तो आप क्या करो कि जितना जल्दी हो सके वो वीडियो एक्सेस का जो है ना पूरा एक बार देख लो, पूरा वीडियो 40 के 40 वीडियो 10-10 मिनट के हैं, तो एक हफ्ते में उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। बट इस वीक का आपका असाइनमेंट है कि खाली फर्स्ट चैप्टर आपको देखना है। फर्स्ट चैप्टर वो वीडियो का आपको तीन बार देखना है, ट्यूसडे को देखना है, थर्सडे को देखना है और सैटरडे को। ओके, so first chapter of the online course, you'll have to go through it 3 times. Okay, so there are about 5-6 videos maximum.
वो आधा घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं अगर एक बार बैठेंगे, तो वो आपको 3 बार देखना है, सो दैट वो आपके माइंड में चले जाए। ओके, एंड देन शरद विल डू सर डे वापस से एक बार रिपीट करेंगे सर? क्या जो फर्स्ट चैप्टर आप बता रहे हैं हाँ, कि तो ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो आप लोगों ने लिया है ना, जिसका एक्सेस अगर किसी को एक्सेस नहीं मिला है, वो एनीवे वो मैं 2-4-5 लोग हैं जिसको शायद एक्सेस अभी तक मिला नहीं है, जो भी वो मैं चेक कर रहा हूँ। जी सर, मुझे भी एक्सेस नहीं मिला है सर। हाँ, चलेगा, वो मैं करता हूँ। कुछ लोग 2-4-5 लोग हैं जी सर। तो सर ये जो चैप्टर है, ये 3 दिन जो आपने बताए, मंडे थर्सडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे को आपको वो चैप्टर 1 आपको देखना है। तो वो सब लीडर्स को मैं बता दूंगा, लीडर्स कैन जस्ट नोट डाउन। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अभी इन्होंने एक क्या नाम है, टर्मिनेटेड एजेंट्स के लिए बोला था सर, संजय गिलानी जी ने, है ना? तो वो क्या मेरे यहाँ पे वॉइस ब्रेक हो रहा था, पूरे तरीके से आवाज नहीं आ रहा, तो एक बार प्लीज रिपीट करेंगे? नहीं, वो हम लोग ये कह रहे थे, संजय जी ये पूछ रहे थे कि जो हमारे पिछले कितने सालों से जितने लोग टर्मिनेट हुए हैं, तो वो लोगों को हम वापस एजेंसी पे ला सकते हैं क्या? तो मेरा उसके लिए जवाब था कि डेफिनेटली ला सकते हैं, और वो बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि उससे क्या होगा, हमको नए नए लोग ढूंढने से अच्छा जो हमारे ऑलरेडी दायरे में है, जो काम कर चुके हैं, जिनका ऑलरेडी इमोशनल बैंक अकाउंट है, उनको अगर फर्स्ट हम लोग अप्रोच करेंगे ये नया प्रोसेस से, तो फिर वो वापस अपने ट्रैक पे आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग ने एजेंसी लिया था, वो एजेंसी चाहते थे, तो वी विल डू दिस प्रोसेस विद देम। बट अभी आप क्या करो, उनको कोई अप्रोच करने की कोशिश मतलब अभी मत करो। आई वुड लाइक दैट सेकंड नेक्स्ट वीक में है ना, मैं असाइनमेंट आपको नेक्स्ट वीक दूंगा इसका। राइट नाउ यू डोंट डू एनीथिंग, क्योंकि मेरे को एक एक्सेल शीट प्री रिक्रूटमेंट शीट आपको बना के देनी पड़ेगी, तो वो मैं दे दूंगा, तभी फिर आप उस पे नोट डाउन करना शुरू करेंगे। तो उसमें मैं टर्मिनेटेड एजेंट्स का भी लिस्ट उसमें आपको डालना पड़ेगा, और वो एक ही जगह पे आपका पूरा ट्रैकिंग होगा, सो डोंट वरी। थैंक यू। हेलो सर। यस सर। हेलो। या टेल मी। सर मेरा ये कहना है कि 2008 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आप मेरी सर? यस अभी सुन रहे। मैंने इसको ऐसे लिया है, आपने मुझे लीडर भी बनाया है कि मैं समझता हूँ कि पोस्ट कोविड आई विल बिकम पीडीओ। अभी मैं एसबीए हूँ। एग्जैक्टली पीडीओ। अभी मुझे पास्ट में पिछले 20 साल में सम ऑफ माय बैचमेट्स आर आल्सो इन दिस प्रोग्राम, अरुण सिंधे इज देयर, ऑल द पीपल आर देयर, कि मैं समझता हूँ कि आई विल बिकम पीडीओ। मुझे कुछ नहीं आता है। पास्ट 20 साल में मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, and I will start from the scratch. Absolutely. मेरे पास जो टर्मिनेटेड एजेंट है जिसको मैं रीस्टेटमेंट करवा सकता हूँ। होता क्या है, आपने जो इश्यूज बताया ना कि साइंटिफिक, प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रिडिक्टेबल, हम लोग कहीं ना कहीं, मैं अपने आप को देखता हूँ कि आई कैन बी मोर सक्सेसफुल, की बीच बीच में मैंने आपको छोड़ा है। 2008 में अगर मैं कंटिन्यूटी में उस चीज को फॉलो करते रहता था, आज मैं ऑल इंडिया के टॉप 100 में होता था एसबीए में, जो नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि हम लोग को उस पर काम करना चाहिए कि अभी दिमाग नहीं लगाना, आप जो दे रहे हैं उसको एकदम अक्षर से, जो बोलते हैं ना, वर्ड बाय वर्ड उसको फॉलो करना है। और अगला जो 6 मंथ हमको लगता है दैट इज अ गेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ्स। करेक्ट एब्सोल्युटली जो आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगला 3 साल 5 साल बेहतरीन हो जाए। यस परफेक्ट। रजनी जी एकदम आपने बहुत मतलब मेरी मुंह की बात आपने छीन ली, कहीं तो मेरे माइंड में वो था, बट मेरे को बोलने को डर लग रहा था कि सब लोग पीडीओ बन जाओ। हेलो हेलो, थिंक लाइक ए डीओ, वर्क लाइक ए पीडीओ। करेक्ट यस। हेलो या बोलिए। हाँ सर, मैं मीरा रिश्ते बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सभी ने हनुमान बन जाना चाहिए और अर्जुन बनना छोड़ देना चाहिए। क्या सुना नहीं मैंने, क्या बोला? सभी ने हनुमान बनना चाहिए। हाँ करेक्ट। और अर्जुन नहीं बनना चाहिए, तो अर्जुन अगर बनेंगे तो बहुत सारे सवाल आते रहेंगे। करेक्ट। हनुमान बनते हैं तो उसको फॉलो किया। राइट एब्सोल्युटली। हेलो सर। यस। हाँ सर, दिस इज प्रवीण बोलिए। सर एसबीएस को 40% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया में रिक्रूटमेंट करने का परमिशन है। हम लोग जहाँ, अभी मैं गढ़चिरौली में हूँ, तो मुझे अगर यहाँ से 200 किलोमीटर नागपुर में एजेंट्स रिक्रूटमेंट और मैनेज करना है, तो इसका भी थोड़ा सा इसके ऊपर भी अगर आप फोकस रहेगा ही आपका, होगा भी। राइट हाँ। तो उसको भी थोड़ा सा आप क्लियर कर देंगे सर।
यस यस श्योर श्योर। और क्या है ना, आपके माइंड में कुछ भी रहेगा वो पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आप डालिए। बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा फोकस रहेगा, मोस्टली है, बट अगर आप कुछ बताएंगे जैसे अभी संजय जी ने बताया, सी बेसिकली प्लीज रिमेम्बर ये प्रोग्राम वन वे ट्रैक नहीं रहेगा। यू नो वी आर गोइंग टू टुगेदर क्रिएट दिस प्रोग्राम। ओके, मेरा तो ऑफ कोर्स मैं फैसिलिटेटर रहूंगा, बट हम लोग सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ सब लोग अगर अपना थॉट्स को कंट्रीब्यूट करेंगे तो वी कैन मेक दिस। तो आपने जो बताया इसको मैं नोट कर रहा हूँ, एंड उसको भी हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट। ये सारे लोगों का प्रश्न रह सकता है सर, और होगा भी, क्योंकि क्या है अभी रूरल से मेट्रो में काम करना है। करेक्ट करेक्ट। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, लेकिन आपकी ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत आसान होगा ऐसे मुझे लगता है सर। थैंक यू। श्योर श्योर श्योर। आशीष, यू वांटेड टू से समथिंग? हेलो हेलो। यस यस बोलिए। हेलो। यस यस, या आई कैन हियर यू। हु इज दैट? सर दिस इज पंकज बोरकुटे। पंकज, यस बोलिए। पंकज सर, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम लोग सर वो वीकली जो, सॉरी मैंने म्यूट किया आपको। हाँ अनम्यूट करो ना जरा खुद को। हाँ बोलिए। हाँ सर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग जो वीकली जो शेड्यूल है उसके बारे में बात करें सर, क्योंकि कैसा है कि वो अगर वीकली शेड्यूल हमारा नहीं होगा तो हम लोग बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है सर। हाँ प्रवीण, तो पंकज तो क्या करने वाले हैं ना, सी बेसिकली अगर आप पूरा वीक को भी पकड़ने जाएंगे और कंट्रोल करने जाएंगे तो कुछ होगा नहीं। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक एक चीज है ना एक एक वीक में अभी मैं बताऊंगा। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड, हम लोग क्वेश्चन फिर बाद में लेते हैं, राइट? लेट अस मूव, क्योंकि शायद बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको अभी नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा। आशीष, यू हैव टू से समथिंग? Ashish No, ka, not me. no, but because you have put your hand up, so you know. हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, अरविंद। हाँ बोलिए अरविंद जी। अच्छा सर, good morning. See, basically, I had seen the foreclosure of the LICs, और वो foreclosure में 4 साल का आगे का सब सेटिंग करके ले लिया। So I am now in the quadrant 4, जो आपने जो सिखाया था। तो अगेन वापिस उसको ये नंबर ये क्या नंबर क्वाड्रेंट 2 में जाने के लिए, तो जैसा भी रजिश ने बताया कि you are become a PDOs करके। So the job is now only 4 years left. Correct. So suppose so that's why I'm not be putting my how much I will recruited the agents. So I want the peace of mind where we are lacking behind, और जो भी है वो लोग से किस तरह से काम बढ़ा सकता हूँ और उसके साथ नया जोड़ के किस तरह से काम कर सकता हूँ। I think in a personal meeting I was also talk to you कि पुराने एजेंट फोन उठाते नहीं बहुत बार। तो it is a very big hurdles for us अभी नए लोग के साथ किस तरह से काम करने के लिए। So that's why I come over here to see something. Correct. तो any idea about that कि नहीं वो हम लोग अरविंद जी वो करेंगे। मुझे क्या लगता है ना, प्राइमरली सी आपका 4 साल भी अगर रहेगा तो भी लिखा करके आपको आगे, मतलब आप लिखा करके नो मतलब ये कर सकते हैं। एंड 4 साल इज अ वेरी बिग पीरियड, मतलब मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पीरियड है। इट इज नॉट अ स्मॉल पीरियड। ओके, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से स्ट्रक्चरल, देखो क्या है ना, स्ट्रक्चरल चेंजेस जब आप करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, तो स्ट्रक्चर जब आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली, और मैं आपको बोलता हूँ, मतलब आपको ये कहता हूँ कि आप इस भ्रम में या इस माइंडसेट में मत रहो कि मेरा 4 साल है और एग्जिस्टिंग एजेंट। आपके एग्जिस्टिंग एजेंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे जब आप नया लोगों को लेके आएंगे, और नया लोगों का एक नया अंदाज से एक नया इससे आप लेके आएंगे नो, तो बाकी लोग अपने आप देखो कैसे धड़ाधड़ एक्टिवेट हो जाएंगे, और आप बीसीजी मॉडल इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। वी विल नॉट टेक एनी मतलब ऐसा, देखो जिनका जो लोगों को मैं नहीं चाहता था ये प्रोग्राम करे ना, उनको ऑलरेडी मैं स्टार्ट में ही कहा, एटलीस्ट 10 लोगों को मैंने नहीं लिया हूँ जिसका 1 या 1.5 साल मतलब 2 साल बाकी था मैक्सिमम। तो इसके लिए वो लोगों को मैंने लिया ही नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि वो नहीं होगा। बट 4 years इज गुड इनफ टाइम, क्योंकि हमारा GOIB का गोल सेटिंग इटसेल्फ 3 साल का है। तो 3 साल में आपका अच्छा ही है, तो 4th year में आपको पूरा इतना मतलब ये कर लेंगे ना, कमा लेंगे, जो शायद पिछले 10 साल में भी नहीं किया है। ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो डोंट वरी अबाउट। सर मैं अरविंद जी के लिए, हमारे सीनियर कलीग है, मैं यही बोलूंगा
कि 4 साल में इतने बच्चे को तैयार कर देंगे ना, जब वो रिटायर होंगे, whether he become leaker or not, एक उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बिकॉज मिलिंद माले जी ने बोला था अपने सेशन में, आई हैव गॉट अनदर 2 years फॉर रिटायरमेंट एंड स्टिल ही इज ऑन द रिक्रूटमेंट स्प्री। तो मुझे लगता है अरविंद सर हमारे सीनियर कलीग हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, तो 4 साल बहुत हो गया हमको लगता है ना। राइट, यस। और आपका भी है ना डेफिनेशन ना, आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, आप कोई डेवलपमेंट ऑफिसर या एसबीआई या पीडीओ नहीं है। आपका खुद का जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन थर्ड सेशन में या फोर्थ सेशन में पूरा चेंज होने वाला है। तो तभी फिर आपको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली ये 3 साल 4 साल 2 साल कुछ भी मायने नहीं रखता है। इवन दो आप रिटायर भी हो जाएंगे ना, तभी भी आप रिक्रूटमेंट करेंगे और दूसरा किसी को नहीं। मतलब वो दैट्स अ मोर पैशन एंड मिशन, rather than just a profession. Okay, so let's move forward. तो अभी नेक्स्ट जो है, आई एम हैविंग अ लिटिल प्रॉब्लम विथ माय, मतलब मैं इसको टेस्ट कर रहा था, थोड़ा सा इश्यू है, वीडियोस थोड़े से लैग हो रहे हैं, बट लेट अस सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। We'll start with the first concept first, and then we'll move forward. Okay, so the first thing that we are going to study is called as the learning curve. Okay, so learning curve करके है, ये हमारे हम ये पहले आज सीखेंगे फर्स्ट कॉन्सेप्ट। मैं चाहता हूँ कि अभी मैंने आपको बताया नहीं, बट एक आपके पास ना परमानेंट एक नोटबुक रखो जो सिर्फ इस सेशन के लिए रहेगा, सो दैट अगर आप आज आपने ये नहीं किया तो ऑलराइट, आज हम लोग बहुत ज्यादा कुछ टॉपिक नहीं ले रहे, बट नॉर्मली आपके पास एक ऐसा ये होना चाहिए जिससे कि आपको इजी रहेगा, राइट। सो लर्निंग कर्व जो है ना, वो लर्निंग कर्व करके एक टॉपिक है। सो व्हाट इज अ लर्निंग कर्व? लर्निंग कर्व मतलब हम लोग जब भी कुछ नया चीज सीखते हैं, ओके, तो हम लोग 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। ओके, सो व्हेनेवर वी लर्न समथिंग न्यू, यू पास थ्रू 4 स्टेजेस। तो ये 4 स्टेजेस को जब हम लोग इस स्टेजेस में जाते हैं, तो हमको कुछ मतलब हमको अगर सक्सेसफुल बनना है तो ये 4 स्टेजेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। we'll have to implement these 4 stages if we want to be successful, okay, otherwise the success doesn't come। जैसे अनिल जी ने कहा कि हम लोग सिर्फ नॉलेजेबल बनते हैं, आई थिंक हमारा मोस्टली सब इंडस्ट्री बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो गया है, और वो नॉलेज का प्रमाण अगर ब्रेन का बढ़ने से होता था तो शायद हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मुंडी होती, सो नॉलेज काफी है, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, तो ये अगर नॉलेज है और अगर आपका सक्सेस नहीं मिला है तो मतलब ये 4 स्टेजेस में आप लोग निकले नहीं हो। ओके, सो व्हाट आर these 4 stages? Let us look at that one by one. Okay, so the first stage basically is called unconscious incompetence. The first stage is called as unconscious incompetence, and that is basically, तो unconscious incompetence का मतलब क्या है? It means I don't know and I can't do. मुझे पता नहीं है और मैं कर नहीं सकते। उसका मतलब क्या है कि मुझे पता नहीं है और मैं कर नहीं सकते। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि विदाउट टॉकिंग अबाउट एजेंसी, आप एजेंट रिक्रूट कर सकते हो क्या? कैन यू रिक्रूट एजेंट विदाउट टॉकिंग अबाउट एजेंसी? सो ऑफ कोर्स द आंसर विल बी नो। तो अनकॉन्शियस मतलब आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। इनकॉम्पिटेंट मतलब मैं कर नहीं सकता। अगर आपको पता ही नहीं है कि एजेंसी बोलने पे रिक्रूटमेंट कैसे करने का, तो आप करेंगे कैसे, राइट? तो मतलब आज आप है ना फर्स्ट स्टेज पे, राइट। सेकेंड स्टेज जब हम होता है ना, तो मतलब आप क्या करेंगे, जब मेरी ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, आप सेशंस को अटेंड करेंगे और आपको सब पता चलेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इंश्योरेंस, विदाउट इंश्योरेंस बोलने बगैर, विदाउट एजेंसी बोलने बगैर हम रिक्रूटमेंट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप सेकेंड स्टेज पे आ जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस मतलब मुझे पता है और मैं कर नहीं सकता, राइट? तो मतलब द सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। आफ्टर लिसनिंग टू माय लेक्चर्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, you will go to stage number 2, which is called conscious incompetence. Conscious means you know how to do it, but you incompetent means you are not able to do it. Okay, third step is called conscious competence. तो कुछ और करने के बाद हम लोग conscious competence होते हैं। तो conscious competence, conscious मतलब क्या है कि I know, and competent मतलब मैं कर सकता हूँ। So basically that is the two things. So conscious and competence. Okay, so conscious competence means I know and I can do it very easily.
ओके, एंड द फोर्थ स्टेज इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. सो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस का मतलब है, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अगर कॉन्शियस का मतलब है पता है, कॉम्पिटेंस का मतलब है कर सकता हूँ, तो फोर्थ स्टेज पे हमको आगे बढ़ना चाहिए था, तो वापस वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस क्यों आया? तो कैन यू जस्ट Sir, it becomes a habit. It becomes By habit. default mode. ऑटो पायलट मोड पे हो जाता है ऑटो पायलट. वेरी गुड, करेक्ट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. सर ओके, मैं सो इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा. व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग टू ड्राइव अ कार, करेक्ट, पहले हम जो है वी हैव टू सी कि कौन सा गियर है, कौन सा हम गियर चेंज कर रहे हैं. बट व्हेन वी लर्न इट, तो हम बातें करते करते भी गियर चेंज कर लेते हैं. वी नेवर नो कि हम कब फिफ्थ गियर में आ गए. राइट, परफेक्ट. दैट इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. करेक्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट. सो बेसिकली वही मैं कहने जा रहा था कि जब कार, व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग टू ड्राइव अ कार, तो इसको मैं थोड़ा सा, मतलब आपने बता दिया, बट इसको बेसिकली थोड़ा ब्रेक करूंगा कि स्टेजेस में. तो जैसे हम कार पहले क्या करते हैं कार ड्राइविंग सीखने के लिए, तो वी गो टू लर्न द कार. सो व्हाट हैपेंस इज वी जॉइन सम ट्रेनिंग स्कूल, राइट. फिर ट्रेनिंग स्कूल में वो ड्राइवर आ जाता है, गाड़ी में हमको बिठाता है और फिर हमको सब बताता है कि ये गियर है, ये ये स्टीयरिंग व्हील है, ये क्लच है, ये एक्सेलरेटर है, जो सब चीज पूरा कंट्रोल जो है कार का, वो हमको बता देता है. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू गो फॉर ट्रेनिंग, कार ट्रेनिंग, the driver will show you all the control, this steering wheel, this is all those things, now where you have gone with this, you have gone now to second stage. So now you know actually how the car runs or what is the thing. आपको पता चला अभी गाड़ी कैसे चलती है. बट क्या उस स्पॉट पे या उस समय पे आप ड्राइवर को बोलते हैं कि ठीक है चलो बाबा, थैंक यू वेरी मच, अभी मैं गाड़ी चला सकता हूँ? आप नहीं बोल सकते, राइट, क्योंकि आपको अभी पता चला है, बट गाड़ी चला सकते हैं क्या आप पता नहीं, राइट. सो देन व्हाट हैपेंस, फिर वो आपको बोलेगा ठीक है अभी एक काम करो, आप गियर को न्यूट्रल में करो, फिर जो आपका गाड़ी को चालू करो, इग्निशन से चालू करो. फिर वो कहेगा कि आपका क्लच को पूरा दबाओ और एक नंबर गियर में गियर डालो, और फिर आपके राइट पैर से एक्सेलरेटर थोड़ा दबा के क्लच को थोड़ा सा छोड़ दो, तो गाड़ी आगे जाएगी. और हमारा सबका एक्सपीरियंस है जिसने भी कार सीखा है, मेरा तो 3 दिन में गाड़ी उधर ही थी, मतलब गड़गड़ जर्क मार के उधर ही गाड़ी थी, मतलब गाड़ी आगे जा ही नहीं रही थी. तो अभी हमको पता होने के बाद भी गाड़ी क्यों नहीं चल रही? क्यों? क्योंकि हमारा पूरा सिंक्रोनाइजेशन जो है, so my car, the first 3 days my car was only jerking, it never started moving, so because what was happening was I was moving from second stage to third stage. I was becoming conscious incompetent to conscious competence. So मैं धीरे धीरे, फिर गाड़ी क्या होता है उसके बाद 2-3 दिन के बाद, ये झटका खाने के बाद फिर धीरे धीरे गाड़ी चालू होते है, फिर बीच में बंद पड़ती है, बट आपको पता है कि ये पीरियड में आप गाड़ी कहाँ पर लेके जाते हैं, मतलब आपको डायरेक्ट हाईवे पे लेके नहीं जाते, हाईवे पे लेके जाएगा तो खत्म, फिर आपका उसी दिन पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, तो आपको इधर नहीं. तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक गली में जाते हैं, ऐसे गली में जाते हैं जहां भूत भी नहीं हो, क्यों? क्योंकि अभी जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमको पैर को और हाथ को ही देखने का रहता है, बाहर देखने के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है. So what we do when we are just about to learn to drive the car, we go in a lane where there is nobody, not even a ghost, because now when we are driving we have to look at our hand and leg and everything, we don't have time to look outside. But continuously ऐसा प्रैक्टिस, मतलब continuously ऐसा ट्राई करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम जाते हैं फोर्थ स्टेज पे, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, whereby what happens कि हम लोग इजीली हाईवे पे जाके, और जैसे आपने कहा करेक्टली कि कभी कभी मतलब हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो हमको पता भी नहीं चलता है कि हम कहाँ पहुंच गए. मेरा अभी मैंने एक स्पीच सुना था, एक चर्च का पैस्टर है अमेरिका में, और उसने एक स्पीच दिया था, और उस स्पीच में वो बता रहा था कि नेगेटिविटी हमको कैसे मतलब रोक के रखती है. तो वो कह रहा था कि वो साइकिलिंग कर रहा था एक्सरसाइज के तौर पे, और आगे एक छोटा सा ऐसे पहाड़ था, ऊपर के तरफ उसको जाना था, बोर भी उसको हो रहा था, उसको भी माइंड में लग रहा था यार अभी ये होगा नहीं मेरे से, इतना ताकत तो अभी नहीं है, ये हो रहा है, ऐसा वो माइंड में सोच रहा था. तभी इमीडिएटली उसको एक किसी का कॉल आया, तो ऑफ कोर्स हैंड्स फ्री था, तो कॉल पे बात करने लगा, और बात करते 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 कुछ समय निकला वो बात करने से, और क्या हुआ कि वो ऑलरेडी वो पहाड़ के ऊपर पहुंच गया था, तो वो कहता है कि वो कॉल अगर नहीं आता और मेरे कॉन्शियसली मैं सिर्फ बाइक के बारे में, साइकिल के बारे में नहीं सोचता, तो अगर सोचते रहता तो मेरा शायद मैं ऊपर नहीं जा पाता, मैं नीचे से वापस आता.
तो मतलब वो कहने का है कि वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में था, इस वजह से उसके कॉन्शियस माइंड से ये निकल गया। एंड यू नो, तो बेसिकली ये 4 स्टेजेस है। अभी ये 4 स्टेजेस हमारे प्रोग्राम में कैसे बैठते हैं? ओके, तो नंबर 1 अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, अभी हम लोग वो लेवल पे है, राइट। मैं अगर आपको पूछूं कि 1 साल के बाद आप कौन से स्टेज पे रहेंगे, या व्हाटएवर, सो बेसिकली आज हम लोग फर्स्ट स्टेज पे हैं। सेकंड स्टेज के लिए आपको क्या करना है, और ये ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, आपको सब सेशंस अटेंड करने हैं। यू विल हैव टू अटेंड ऑल द सेशंस, यू विल हैव टू अटेंड ऑल द मास्टरमाइंड। वो अगर आप करेंगे तो आपका सेकंड स्टेज परफेक्टली मतलब आपका हो जाएगा। ओके, सो फॉर सेकंड स्टेज यू विल हैव टू अटेंड ऑल द सेशंस एंड यू विल हैव टू अटेंड ऑल द mastermind meeting. Just attending will help you to go through this. Now Mondays का कोई भी शेड्यूल किसी को रखो मत। Mondays का सब लोगों को आप इंटीमेट कर दो कि Monday morning I am not available करके, सिंपल मतलब so that nobody keeps any kind of thing. आप जहाँ कनेक्टेड भी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किधर भी है, उधर सब आप बता दो कि मंडे को आप नहीं है, राइट, फर्स्ट हाफ में। उसके बाद सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड आपको जो इम्प्लीमेंटेशन असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी, वो असाइनमेंट्स आपको कंटिन्यूसली करना है। मैं आपको कुछ पायलट प्रोजेक्ट दूंगा। पायलट प्रोजेक्ट मतलब आपको कुछ 10, 15, 20 आपके एग्जिस्टिंग एजेंट या आपके नॉर्मली आपके एग्जिस्टिंग एजेंट के साथ आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। मतलब उनको कॉल करके ऐसे ही ये लेना पड़ेगा। दैट इज अ सेकंड मतलब थर्ड स्टेज। सब लोगों के साथ एक बार आप करेंगे सो दैट आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। बट जो ज्यादा है, आपका जो बड़ी एजेंट है उसके साथ आपको बहुत इंटेंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटेंस प्रैक्टिस में क्या होगा, वो भी मतलब उसमें एकदम कैट बन जाएगा। सो यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस, मतलब यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस विद ऑल द एजेंट, बट दैट इज ओनली वंस। But with your buddy agent, you'll have to do it very, very rigorously so that they also imbibe and they also get this whole competence and this skill. Okay. अगर वो करेंगे तो at the end of the fourth, by the end of the year, हम लोग सब unconscious competence में आ जाएंगे. So that's the way it is going to be. Okay. So so there are two things. One is second stage पे जाने के लिए आपको सब sessions को attend करना है, mastermind meeting को attend करना है. थर्ड स्टेज पे जाने के लिए आपको सब असाइनमेंट्स करना है, सब प्रोजेक्ट्स करना है, जो भी आपको जो प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा वो सब आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो आप ऑटोमेटिकली इसमें जाएंगे। अभी प्रॉब्लम इज नॉट टू हाउ टू गेट इनोवेटिव थॉट्स इनटू योर माइंड। से हमारे जिंदगी में एक चीज क्या होता है ना, हम लोग काफी कुछ अभी एज पे है ना, काफी कुछ जानते हैं, और डी हॉक कहता है कि जो हम जानते हैं ना वही हमारा दुश्मन बनता है, So we know so much about life, about things, our experiences and the past, So that's why somewhere, always there is a questioning mind. That mind will keep on coming and questioning. कि ऐसा हो सकता है क्या, ये होगा क्या, ऐसा होगा क्या, So I would like all of you to empty your cup. Basically जो भी आप जानते हैं उसको सब भूल जाओ। जैसे साहब ने कहा था कि हमको पीडीओ बनना है, तो एग्जैक्टली पीडीओ अगर हम बनेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है पीडीओस के लिए ये सबसे बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि पीडीओस में कोई पास्ट बैगेज नहीं है, सो आई थिंक पीडीओस ज्यादा इसमें बेनिफिट कर सकेंगे। और स्पेशली मैं पीडीओस को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, बिकॉज इट रिक्वायर्स गट्स एंड यू हैव शोन दोस गट्स, एंड आई थिंक यू आर डेफिनेटली मतलब आप सोचो कि सबको अगर ये पीडीओ के टाइम पे अगर प्रोग्राम होता तो कितना उसका इम्पैक्ट आज होता है, that's the kind of this. So please do this very religiously. All the PDOs are basically don't have any background or anything, so therefore it will be